basically whenever you're planning an investigation, you need to understand that you should be able to identify the operators that is used. You need to be able to understand what are the conditions that need to be employed, right? And which conditions you need to subject to variations, right? You need to classify them as that, you need to make them static, right? जो भी आपके डायनामिक्स हैं उनमें से किन चीज़ों को आप स्टैटिक करेंगे, कौन से आपके की वेरिएबल्स हैं जिनको आप फिक्स करेंगे, राइट? देन measurement observation, what measurements you're taking, what are your observations, how you're recording them, that is also very important. The units, the values, three significant figures, I mean these three things are very important. Then how you will compare different experiments. For example, if you have one experiment that has several variants in it, then how you are comparing the readings to have a fair test, right? That is also very important. Lastly, how do you interpret the results to make a conclusion, right? Remember, आपका result आपका conclusion नहीं होता. Results वो data points हैं जो आप collect करते हो, right? They could be in your favor or they might not be in your favor. Assalamu alaikum, Haseeb. Welcome. Okay, we're going through paper 6. ओए होए इतना साउंड. ऑलराइट. ओके, अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं, बट आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन एज वेल, एज यू कैन सी, so that in case if you miss anything or there's any issue with you can say with internet, you'll be able to get a feedback of this same session, right? Okay, तो हम अब बात करते हैं हम लाइन, राइट? बेस्ट लाइन जिसको कहते हैं, बेस्ट फिट लाइन, राइट? सो एंड दैट इज़ ओनली यूज फॉर स्कैटर प्लॉट्स. एंड रिमेंबर, जब भी आप प्लानिंग करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन की, या जो भी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज आई वाज सेइंग दैट द रिजल्ट्स may be in your favor and they might not be in your favor. They may have a good trend and they might not be following any specific trend. The results is the data points that you collect from the readings, right? It does not conclude your experiment, right? Conclusion आपने उस result में से explanation की form में draw करनी है, right? Okay, so let's have a look at what's the best fit line, right? Okay, now over here you have these four trends, A, B, C, D. Which one do you think is having the best fit line, right? Considering के best fit line के आपके ये दो critical points हैं, that the line may pass through some points, none of the points, or all of the points, right? So it not necessarily goes through the point, right? Second point, try to have the line as close as possible to all the points and as many points above the line as below, right? जितने आपके लाइन से ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं उतनी डाटा पॉइंट्स आपके नीचे आने चाहिए, ठीक है? So out of this A, B, C, D, yes, A is the answer. As you can see कि आपके पास टॉप पे अगर देखें कुछ पॉइंट्स के टच कर रही है, कुछ के थ्रू जा रही है, बट ऑन द टॉप वी हैव point 1, point 2 and point 3, right? On the bottom we have 1, 2 and 3 points under the line. So this is the best fit line. This is the accurate one. B is obviously not accurate. C is also inaccurate. D is also inaccurate because all of the data points are below the line. In case of C, that is also the problem, that we only have 3 points on top but we have 7 points on the bottom, right? In line B we have all the points, most of the points on the top and few points below the line, right? So we need to fit the line. Okay, now another, out of this B, this blue and the pink one, which one is the accurate one? Pink wali, blue wali. Okay, okay, blue wali. Okay, baki rest of you. पिंक, आप अच्छा आपको लगता है कि पिंक वाली है. अच्छा, वाई पिंक वाली, ये भी डिस्कस कर लेते हैं. एंड वाई ब्लू वाली, वाई 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 एक्सेस को टच करिए. नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रोजेक्शन है बेटा, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, राइट? दैट इज पॉसिबल. वो आप इंटरपोलेट कर रहे हो, उसको छोड़ दें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? दिस हैज नथिंग टू डू विद इट. You need to look at the data points,
दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली. ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी मैंने दो इमेजेस प्रिपेयर की हैं, खुद बनाई हैं. आई टुक द स्कैटर चार्ट एंड आई मेड दीज टू लाइंस, राइट. दोनों बेस्ट फिट है, ठीक है. ओके, सब ठीक है, सब अच्छा है. नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज however correct. The pink one is correct, the blue one is wrong. Just count 1, 2, and 3. Three data points on below the line, and we have 1, 2, 3, and 4 data points on the line. So it doesn't have much of an equality, right, in the balancing. So this is not an accurate line. Yes, it is very close to best fit. It may be considered by the examiner, but in real truth, this one is more accurate, as the number of data points on the top are equal to the number of data points at the bottom, right? So keep that in mind, that this is, however, a much better best fit line compared to this one, right? So it doesn't matter that if the line is going through the points or not, right? Because as you can see, this we can say that this is a shaded area, right? This is also a shaded area. So this is the center line that represents these data points, right? So this is how you're supposed to work with this. Got it? Okay. Now let's come to the actual questions. The first question that we're going to go through is this, right? A student investigates the balancing of a meter rule, right? Here's we have a meter rule which is balanced on a pivot, right, at point P, which is at 50 centimeter marker. Okay. The object P is placed at 10 centimeter mark, so that means A is equal to 40 centimeters, right? Obviously, it would be from 50 to 10, so it makes 40 centimeters, right? Now, object B is also at a certain position, right? So we'll come to the diagram in a moment, but first we need to understand what the first question is all about. So part A suggests the student places the meter rule on the pivot at 50 centimeter. She places the object P, which is at the center of the meter rule, right, at 10 centimeter mark. Now center, right, with its center, ये बड़ा important point है यहाँ पे, ठीक है? Okay, the object covers the scale markings on the meter rule as shown. Now since the object is covering, how would we know that this is precisely at 10, right? How would we be able to know this? Got it? कैसे पता लगेगा कि ये exact center 10 के ऊपर ही आ रहा है? How would we know that? Set squares से, okay? Explain briefly how object P is as accurately possible to the center of mark 10. कैसे रखेंगे? जी, opinions. That is a possibility. What we can do is that we can measure with the meter rule, another meter rule, we can measure the length of this object, right? Once we get the length, we can simply see what marking over here is there and over here, right? And then out of that we can take the center of it, right? Using simply divide using L by 2, right? We can get the center line and expect where the center line is supposed to be, considering how much this object is covering these markings, right? तो आप इन markings के difference से ही आप इसका center निकाल लोगे, ठीक है? So it would be very accurate. You can easily accurately place this object, right? But just by measuring the length of this object. Got it? Any confusions here? Okay. Now you may add to figure 1.2 or draw any other diagram to help your explanation, right? I didn't leave any space over here. Actually, this has 3 lines over there to explain your answer, so you can simply explain. Now let's move to part C, right? I omitted part B because this was part B, right? The explanation was there. Okay. Now she repeats this. Now what she is doing is that she's moving this object Q, right, to a certain position while moving P as well, right? She's moving both of these objects, and while she's trying to maintain the balance of the pivot, right? So this is for P and this is for Q. Now she has taken several readings, right? She's moving P with a difference of 5 centimeter, and contrary to that, Q is balanced at different values. So we were supposed to find this value for B as well, right? Now how did I find this value of B?
I think I didn't, I forgot to place the part of the question over here, right? In which she actually has this object P as a starting point of which was 71.2 centimeter marking, right? So over here, what I did is that I took the difference, right? Center is at 50, right? Pivot is at 50. The object is at 71.2. So the difference was 21.2, which is this missing value that I placed in. Now remember, if the units are missing, then you need to write the units as well. So it is very important to have these units, right? Okay. Now once we get these values, we were supposed to plot this graph. Now now in most of our cases, we actually have this issue that we are not able to plot the line properly, right? Now this is again a best fit line, right? So I have interpolated this line, right? A little bit, just to give you an idea where the line is actually going, right? This is not how you're supposed to be making the lines, but to get the best fit, I just drew the whole line to tell you that this point and this point, which I've marked with the arrows, are not on the line, while point 2, 3 and 5, right? I'm just going to name them as 1, 2, 3, 4 and 5, right? These out of these 2, 3 and 5 are on the line, 4 is above the line and 1 is below the line. Now I tried several iterations using a scale, right, to put it somewhere in a better position, but this was the best fit that I could find for this solution. Now how I arranged the data is because the difference is actually how many blocks do we have. We have one total of 50 small blocks, or you can say 5 large blocks on the y-axis, and 5 large blocks on the x-axis, right? Makes it a total of 50 small boxes, right? Okay, so my data range is from 20 to 40. So if I place 20 over here, then I get 40 somewhere around here, right? That leaves the top of the chart unused, and you know, it makes it very hard to get the bottom of the chart, right? So instead, what I did, I placed 20 at the fifth box and then counted to 40 to get the y-axis. Now remember, you need to identify these axes as with their units, right? So on P, as suggested by the question, we need to put A, or the position of P, on y-axis, which we did that. Now GG. अच्छा, हाँ देखो, बेस्ट फिट आप तब बनाओगे व्हेन यू आर सपोज टू हैव अ ट्रेंड, राइट? अच्छा, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बन रहा है कुछ ना कुछ, ऐसे ही है, ठीक है? अच्छा, बट एट टाइम्स क्या होता है कि आपके पॉइंट्स कुछ इस तरह से जाना शुरू कर देते हैं, विच in turn cannot be summarized using a simple line. It is a curved trend, right? Over here it's a linear relationship, right? अच्छा, ये कर्व्स आपके पास कहाँ पे आती हैं? जहाँ पे आपके पास फंक्शंस स्क्वेयर्ड हो, डिवीजन में हो, या मल्टीप्लिकेशन चल रही हो, कुछ ना कुछ चल रहा हो, राइट? दिस इज सिंपल एडिशन, राइट? डिस्टेंस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपके पास एक लीनियर ट्रेंड ही आना चाहिए था, ठीक है? डेफिनेटली जैसे जैसे मैं पी को इनवर्ड मूव कर रहा हूँ, आई डेफिनेटली नीड टू मूव क्यू टुवर्ड्स द सेंटर एज वेल, ऐसे ही है, क्योंकि बैलेंस करना है ना इसको। जैसे जैसे आपका ये लेंथ कम हो रही है ए की, आपका बी भी कम होना चाहिए। सो इट्स अ वेरी लीनियर रिलेशनशिप। इन दैट रिगार्ड वी वर सपोज टू हैव अ लाइन। अब आपको कैसे पता लगेगा कब आपने बेस्ट फिट लगानी है और कब आपने कर्व लगानी है? दैट द डाटा इज रिप्रेजेंटिंग यू, राइट? यहाँ आप देखें तो लीनियर रिलेशनशिप है, जैसे जैसे ये वैल्यू ऊपर जाती जा रही है आपकी दूसरी वैल्यू भी इक्वलिटी ऊपर जा रही है। अच्छा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप एज वेल, कि आपकी अगर ये वैल्यू ऊपर जाए तो दूसरी वैल्यू आपकी नीचे आना शुरू हो जाए, विच इज फाइन। उसमें भी आपके पास लाइन बनेगी, बट इट वुड बी दिस वे, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे। गॉट इट? तो वो नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ आ जाएगी, बट इट वुड बी द सेम लीनियर रिलेशनशिप। बट इन केस ऑफ दीज कर्व्स, जब आपके डाटा पॉइंट्स इस तरह से आर्च करना शुरू कर दें, देन आपने इसको रफ हैंड से, सॉफ्ट हैंड से इनको ज्वाइन करना है, ठीक है? Got it? I'm telling you, if your data, let's say for any values of x and y, if you're going 2, 4, 6, 8, right? Okay. Y की value, let's say हम कहते हैं it was
4, it was 16, it was 98, and it is 256, right? Whatever the value is. Now, as you can see कि यहाँ पे तो आपके पास linear relationship है x के अंदर, right? But y की values are changing very very erratically, right? That shows कि आपका जो trend है वो immediately ऐसे shift करेगा, ठीक है? एक एक्सेस आपका ग्रो नहीं कर पाएगा, दूसरा आपका एक्सेस बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है. सो ये आपके पास नेचुरली एक कर्व बनेगी, राइट? So this is impossible to be explained using a best fit line. Over here you have to get the best curve, right? तो आप best curve जब लगाएंगे तो वो आपका data आपको represent करेगा. If the data is having large variations between themselves, कि let's say first और 2 के दरमियान अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका 12 का difference है. अब now 16 and 98 के दरमियान there is a huge difference, and then between 98 and 256 there is a lot more difference, right? So in that case, you would understand just by looking at this chart, this data that you have, or the data that you will collect from your readings, that the line is going to be either linear or curved. Data आपको खुद बता देगा, ठीक है कि नहीं? Any confusions here? Okay, moving on. What we did over here, that we took several points, right? अच्छा, अब बात ये कि how to get the range, because it is suggesting that you do not need to start the graph from 0 0, and this in our case is the best way to represent the chart. मसला वहाँ पे आता है जहाँ पे हमें 0 0 करना पड़ता है, and we'll go through some of these problems, right? To understand कि 0 0 को हम कैसे adjust करेंगे. For now, what I did, I divided the y-axis having two small boxes equal to 1 centimeter. That I plotted from 17.5, right, instead of 20, and I ended at 42.5, right, on the top. So, in that case, I got 40 over here, 35 here, 30 here, 25 here, and 20 here. And why I did that? Because my data over here was actually having this difference of 5, right, for P. For Q, these are the values which are in decimal places, right? These are not whole number. So what I did is that I simply divided the total number of difference. What I did, I took the maximum value, which is this 21.2. So I took 22 and took this lower value, which was 9, right? I took the difference between the two, right? And that was 13. Now what I did, I had total of 50 boxes on the bottom, right? So 50 boxes, so I divided 50 by 13, I got 3.83. That means if I start my point from 9 and end at 22, right, I will definitely get, I need to divide this into 3.83 small boxes, right, for each point. So instead what I did was that I took the point from 9 over here, I divided the whole chart into 4 small boxes. As you can see, I took these small markings for myself for my own ease, right? And then I got to this point, which is 21 point, you can say it is greater than 21.5, right? This is 21.5 plus, but it is not to 22. I cannot put 22 over here as this value is suggesting you that, right? So whatever you need to do is that कि आपका जितना भी डेटा है ना जो आपने प्लॉट करना है, होल नंबर वाले तो आप इजीली प्लेस कर लोगे, मसला इनका आता है डेसिमल वालों का, राइट, फ्रैक्शंस का. What you need to do is take the highest value and make it a whole number, and take the lowest value and make it a whole number. And remember कि आपने उससे अपर वैल्यू, इससे 21 से अपर और इससे छोटी वैल्यू आपने यूज करनी है, ठीक है, which in my case was 22 and 9. Take the difference and divide the total number of boxes, right, total number of small boxes by the number that you have attained over here, right? That way you will be able to easily divide these graphical points, right? And this way you can easily plot, place your points in this regard. Got it? जी जी. जी, उसके बाद मैंने बेसिकली इस 3.83 को कंसिडर किया होल नंबर विच वाज 4, ठीक है. I consider this as 4 क्योंकि 3.8 is very close to 4.
सो आई कैन नॉट ब्रेक दीज बॉक्सेस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, राइट, डेसिमल प्लेसेस हैं। तो मैं अगर बॉक्सेस को भी डेसिमल में ले जाऊंगा तो मैं अपने ऊपर अजाब डाल लूंगा, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, आई आई चोज द क्लोजेस्ट नंबर विच वाज 4, राइट। अगर मैं 3 पे प्लॉट करता इसको तो ये ग्राफ बहुत छोटा बनता, ठीक है, राइट। So I wanted the graph to be as possibly large as I could make it, right? So in that case, I took 4 small boxes to each unit, right? तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो डाटा है वो 9.7 से स्टार्ट हो रहा है एंड ends at 21.2। तो मैं इसको 9.5 से भी शुरू कर सकता था, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम 9। as I said, I placed these small markings, so I got to 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो मुझे तो सिर्फ 21.2 तक जाना है, विच आई कैन easily represent because 4 small boxes if equal to 1, then each small box, right, should be equal to 0.25। तो मुझे एक स्मॉल बॉक्स 21 के बाद चाहिए था, विच आई गॉट 2 ओवर हेयर, राइट। मुझे यहाँ 2 मिल गए। सो आई कैन easily get to 21.2 on the graph, right? कुछ समझ आई कि रेंज को कैसे मैंने डिवाइड किया यहाँ पे अपना ग्राफ का साइज इंक्रीज करने के लिए? एनी कंफ्यूजन्स, एनीवन? क्या ये जो मार्किंग्स मैंने लगाई हैं नीचे छोटी छोटी, हाँ हाँ, पेंसिल से आप लगा दें। आई मीन द ग्राफ पेपर इज योर्स, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपका लाइन, आपकी सिर्फ वो लाइन जज करेगा, ठीक है। ये आप मार्किंग्स लगा लें अपनी आसानी के लिए, नो वरीज। आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लेने के लिए ये ऑरेंज लाइंस भी लगाई हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, अपना ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करने के लिए। एज यू कैन सी कि ग्रेडियंट भी मैंने नेचुरल पॉइंट्स का लिया है, ठीक है। आई डिड नॉट यूज माई डाटा पॉइंट्स। सो सेकेंडली, ग्रेडियंट भी आपने रिप्रेजेंट करना है नेचुरल पॉइंट्स का। सो आई टुक द पॉइंट्स विच आई कुड ईजिली डिसाइफर, विच आई टुक 13 एंड 16 ओवर हेयर, कि मैं हर चीज़ में डेसिमल में ना जाऊँ ना, ठीक है, बिकॉज दिस ऑलरेडी विल रिजल्ट इन सम डेसिमल्स। तो मैं एक वैल्यू को, पी की वैल्यू के डेसिमल में ले जाऊंगा, क्यू को मैं नॉन डेसिमल में रख के चला लिया, ठीक है। तो मैंने इसी से 13 से और 16 से 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की, वेर एवर दे वर हिटिंग माई ट्रेंड लाइन, उससे मैंने 2 एक्सेस के ऊपर भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, राइट। सो ये मेरा जो रेड वाला है, दिस इज ग्रेडियंट। तो आपने ग्रेडियंट अपना रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, यू कैन अरेज दीज लाइंस इफ यू वांट, आप चाहें तो इनको अरेज भी कर सकते हैं, इन मार्किंग्स को भी और इन लाइंस को भी। आई मीन आई वुडंट वेस्ट माई टाइम ऑन अरेजिंग दैट आइदर। वाई? बिकॉज दिस इज फॉर माई वर्किंग, राइट। द एग्जामिनर डज नॉट डिडक्ट मार्क्स फॉर दीज मार्किंग्स, right? They cannot. Why? Because they gave you a blank graph paper, so you can do whatever you want as long as you're doing things accurately, neatly, and precisely to the rules, right? So markings, putting these markings is not against the rules, right? So you can put these markings to help you solve this much more easily. अगर मैं markings ना लगाता ना, तो ये मेरे लिए points को identify करना, especially for these decimal values, ये जो ये decimal values आपको नजर आ रही है ना, इनको represent करना बड़ा मुश्किल हो जाना था मेरे लिए। So I did these markings so that I could easily go, क्योंकि 17.8 था तो मुझे 18 की मार्किंग चाहिए थी ताकि मैं 17.8 को यहाँ कहीं निकालता, क्लोजर टू 18, राइट। सिमिलर वे 15 के लिए भी मुझे चाहिए था, फिर 13 के लिए भी चाहिए था, राइट। सो ऑल दीज मार्किंग्स आई प्लेस्ड फॉर अ रीजन। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? एनी इश्यूज बॉयज? ओके, नाउ ग्रेडियंट, इसका अब ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था फर्दर मोर, ताकि मैं ग्रेडियंट को फिर इन डेप्थ डिस्कस कर सकूँ। तो ग्रेडियंट के लिए आई टुक दीज 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स विच ऑन द क्यू, राइट, डेल्टा क्यू इज एक्चुअली, और व्हाट वी कैन से डेल्टा बी, राइट, क्योंकि हम बी इसको कह रहे हैं। तो डेल्टा बी इज एक्चुअली 16 माइनस 13, दैट गिव्स मी 3 सेंटीमीटर्स, राइट। अच्छा, डेल्टा ए हमारे पास, हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर। नाउ each 2 small box is equal to 1 centimeter, so we've got 1 small box, right, and we got 2 small boxes। तो ये आपके पास आ गया 26। so 26 यहाँ पे आ गया, और अपर वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 31 and 31.5, right?
So 31.5 is the upper value, right? Now we can simply take the difference of this, right? Uh, oh, just a minute. Okay, 31.5 minus 26. So it is 5.5, right? So we get this 5.5 सेंटीमीटर, राइट? अब आप ग्रेडियंट क्या निकालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस होगा. सो ग्रेडियंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट वुड बी 31.5 माइनस 26 डिवाइड बाय 16 माइनस 13, दैट इज roughly 5.5 divided by 3, and the difference of this, these two will give you the value, which is now again 5.5 divided by 3 is 1.833, right? So the gradient over here is 1.833. अच्छा, what are the units for this gradient? Units क्या होंगे इसके? Anyone? क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई? इट्स अ वैल्यू दैट यू आर कैलकुलेटिंग, मैथमेटिक्स है, यूनिट क्यों नहीं होगा? जी, सेंटीमीटर होना चाहिए. बिल्कुल, माशाल्लाह, सारे छा गए हो बेटा. दोनों सेंटीमीटर की वैल्यूज हैं, कैंसल आउट हो जाएगा, ये यूनिटलेस होगा. ठीक है. हाँ, अगर हमारे पास कोई और क्वांटिटी होती, यहाँ पे आप देखो ना, सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर हो रहा है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे. बट इफ इट वर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लेट्स से सेकंड्स, तो आपने यहाँ इसके यूनिट लाजमी लिखने हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है. हाँ, ए यू. हाँ, ए यू लिखते हैं, आर्बिट्रेरी लिखते हैं. ठीक है. सो जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट के नॉट ऑलवेज दैट योर ग्रेडियंट विल बी बिटवीन द सेम क्वांटिटीज. ठीक है. समझाई कि नहीं आई? तो आप ब्रैकेट में आगे यूनिटलेस लिख दें इसको. ठीक है. आर्बिट्रेरी यूनिट लिख दें. ठीक है. ए यू लिखना चाहें, आई डोंट थिंक, आई हैवंट सीन एनीवेयर कि कहीं पे उन्होंने ए यू यूज़ किया हो कहीं पे. बट इफ द यूनिट्स आर देयर देन द यूनिट्स आर मस्ट माइंडेड, कि अगर आपके ग्रेडियंट की यूनिट्स बन रहे हैं तो आपने लाजमी ग्रेडियंट के यूनिट्स डालने हैं. अगर यूनिटलेस है तो भी आइडेंटिफाई करें, अगर यूनिट्स हैं तो भी आपको यूनिट्स लिखने हैं. नेवर लीव योर ग्रेडियंट विद जस्ट अ वैल्यू, राइट? क्योंकि ये एक क्वांटिटी है जो आप कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है. सो क्वांटिटी के यूनिट होते हैं या वो यूनिटलेस होगी, फिर भी आपने आइडेंटिफाई लाजमी करना है इसको. ठीक है. एनी ऑब्जेक्शंस ओवर हियर? एनी क्वेश्चंस? Okay, right. Okay, moving on to the next question. We have the LDR problem, right? Okay, it's a design of experiment. A student investigates. Uh, okay, a student investigates the resistance of an LDR, right? तो हमारे पास resistance हमने मेजर करनी है. The resistance changes as the intensity of light falling it varies. The resistance R of the LDR is calculated using this equation. Now this is to be noted, right? Where V is the potential difference across the LDR and I is the current of the LDR. Plan an experiment to investigate how light intensity affects the resistance of LDR, right? The apparatus that we are supposed to have an LDR equipment to connect the circuit as shown in figure, which is the power supply, ammeter, voltmeter, right? A lamp with power supply, which is another additional circuitry that we have. Now in your plan you should complete the circuit diagram, right? We need to complete the diagram, that's part number 1, to show a voltmeter, right, connected to measure the potential difference of the LDR, right? Potential difference across LDR. Now this is to be understood. Now state how the light intensity following of the LDR will be varied and list any additional apparatus needed, right? Explain briefly. Now list of the additional apparatus, will put it over here in a moment. Explain briefly how to do the experiment, right? How to do the experiment, including any precautions to be taken, right, to ensure reliable results. Now this is also a point to note, and state one key variable to be kept constant, right? So this is also a very important point. We need to list one key variable that needs to be kept constant. Draw a table or tables with column headings to show and display the readings that you're supposed to be taking, right?
Okay, explain how to use readings to reach a conclusion, and that's what I said, that from results to conclusion, right? Okay, first I will complete the circuit diagram. I will take up a shape, right? uh, I'll try to make a shape over here, right, like this. Okay, secondly, I'm going to have uh, sorry, I'm just going to add a lamp over here, right? Let's say at any point, this is a lamp, right? And in this circuitry, I think I need to draw the circuit myself, right? I won't be able to. Okay, yeah, we have this lamp over here, right? And then with the lamp, I'm going to add a variable resistor, right? Okay, and another power supply, right, that is required to do this, right? Okay, now how to complete the diagram? I'm just going to take these terminals and put a voltmeter across the resistor, right? So this is how figure this is completed. Now remember, you need to draw a little tiny little meter rule over here and identify, just name it as label this, that this is meter rule. This you don't need to label anything, because these are circuit diagrams, so these are well understood. Okay, now coming back to our problem, right? Complete the circuit diagram to show the voltmeter. This is done, right? State how the light intensity is following, and list any additional apparatus, right? So in additional apparatus, what are we going to need? Number one, meter rule. And why meter rule, I'll explain in a moment. And number two, potentiometer, right? And why potentiometer? Over here, here's the potentiometer or the variable resistor, right? Why the potentiometer is because I want to vary the voltages to this lamp, so that I could vary the intensity of light coming out of this lamp, right? Got it? Okay. Now with this, I think we're done with this. Now state how the light intensity will be varied, right? Now procedure, right? Now discuss the procedure, how it will work, right? Okay, now I'm just going to type this out instead of going into complete detail, right? So how this is going to get varied is very simple, that attach a potentiometer to the lamp circuit to vary the voltages going through lamp. This will make the light intensity of lamp variable for the study, right? So now we can actually vary the intensity using this LDR that we have over here. Once we change the value, the intensity of the light will be changed, right? Now this is this point, state how the intensity is done, right? Second, now for the second point, now place the lamp circuit close to the LDR circuit at a certain distance using meter rule, right? So we need to ensure how the meter rule is to be used over here, right? Okay, ये तो आपका आ गया प्रोसीजर. अच्छा, एक चीज़ हमने भी यहाँ पे लिखनी थी, which is key fixed key variable, right? Fixed key variable, and that is the distance of lamp from LDR. इसलिए हमें मीटर रूल चाहिए था क्योंकि हमने इस डिस्टेंस को फिक्स करना था, राइट? सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, राइट? दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट.
राइट। अब हम पूरा अपना प्रोसीजर जो है फर्दर मोर लिखते जाएंगे, राइट। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या होगा, टर्न ऑन द लैम्प, हम लैम्प को ऑन करेंगे, ठीक है, एंड टेक द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, राइट, टू identify the voltage across LDR, right? Now vary the resistance of potentiometer and record the voltmeter readings of circuit 1. Now I'm just going to name it as circuit 1 and circuit 2, right? So that it's easier to explain, I'm just going to go with this, right? Let's call this circuit 1 and let's call this circuit 2, right? So that when we're writing the explanation, we're easily able to identify, right? Now vary the resistance of potentiometer in circuit 2 and record the voltmeter readings in circuit 1, right? Now this is just the procedure, ठीक है। Take several readings till the light intensity is near to 0, right? Okay, that's another thing to understand. ओके अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है विच इज़ द एम्बियंट लाइट, राइट। नाउ एम्बियंट लाइट को हम फिक्स नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज़ दैट कि हम यहाँ पर एक एडिशनल फैक्टर डाल सकते हैं एडिशनल एपरेटस में, विच इज़ द बॉक्स, राइट, कि हम वोल्ट मीटर भी बाहर निकाल लें और आपका जो ये है पोटेंशियोमीटर, राइट, ये अगर आप वायर सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो आप लैंप को और एलडीआर को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें, ठीक है, और आपका जो वोल्ट मीटर है और एम मीटर वो बाहर होने चाहिए, राइट। नाउ ओवर हियर वी नीड टू मेजर द वोल्ट मीटर एंड एम मीटर रीडिंग्स, राइट। हमने एम मीटर की भी रीडिंग्स को साथ साथ नोट करना, नॉट जस्ट द वोल्ट मीटर, राइट। तो दोनों रीडिंग्स जब आप ले लेंगे, राइट, इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, राइट। ये अब आपके पास रीडिंग्स आ गई। अब हमने टेबल इसका क्रिएट करना है। तो टेबल में आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो अब आप यहाँ रखेंगे रेजिस्टेंस, राइट, ऑफ circuit 2, right, versus voltmeter reading versus you can say current reading, right, जो भी करंट की आपकी रीडिंग आ रही है, right, that and this will be V over I ratio being equal to R1, right, which is the resistance in the circuit 1 or the resistance of the LDR, right. Got the idea? ये आप 4 कॉलम इसके बनाएंगे और आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी का है, ओवर हेयर दिस रेजिस्टेंस ऑफ C2, दिस LDR इज एक्चुअली लाइट इंटेंसिटी वेरिएशन, राइट। लाइट इंटेंसिटी की जो वेरिएशंस आप लेके आ रहे हो वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू ला रहे हो, राइट। तो आपका जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन वो इसके और इस रेशो के कॉम्बिनेशन पे आपका कंक्लूजन निकलेगा, राइट। ये जो आपने वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स ली हैं फ्रॉम दिस एम मीटर एंड दिस वोल्ट मीटर, ये सिर्फ आपको ये रेशो देने के लिए थी, क्योंकि आपने तो इसकी आपने डिस्कस क्या कर रहा था, इफ यू रिमेंबर, we need to be able to discuss the resistance of LDR using this equation, right, and how the intensity of light dependent resistance is changing with the intensity of light, right. इसकी जो LDR की रेजिस्टेंस है वो लाइट इंटेंसिटी के साथ कैसे चेंज हो रही है। सो गिव अ लिटिल एक्सप्लेनेशन टू दिस। अब फाइनल कंक्लूजन आप इसका ड्रॉ करेंगे। कंक्लूजन में आप बता देंगे बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, जो आपके जनरल डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। वी डू नो
कि अगर आप एलडीआर का इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी और वो बनाएं चार्ट, ठीक है, एलडीआर का, तो लेट्स से दिस इज लाइट इंटेंसिटी which in our case is represented by this resistance. Now remember कि resistance increase होगी तो light intensity decrease होगी. So यहाँ पे inverse relationship है. I will say कि L is inversely proportional to R2. तो ये आपका ग्राफ उल्टा बनेगा, ठीक है. यूजली मैं दोनों ग्राफ्स यहाँ ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे आपके पास R1 आ गई विच इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द LDR. तो होता ये कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है आपकी LDR की रेजिस्टेंस कम होती जाती है. नाउ दिस इज द नेचुरल ग्राफ, बट इन आर केस अगर आप छोटा सा एक ग्राफ भी इसके साथ ड्रॉ कर दें कि R1, ठीक है, LDR और R2, ठीक है, लैंप की बात करें, तो आपका ये ग्राफ बेसिकली इन्वर्स पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं आपकी लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है. सो दिस एक्सिस, दिस वन इज एक्चुअली रिवर्स्ड इन दिस केस, राइट. तो आपका ग्राफ बेसिकली क्या बनेगा, आपकी जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम कब होगी, जब रेजिस्टेंस लैंप की कम से कम थी, राइट. दैट मीन्स कि आपकी लीस्ट रेजिस्टेंस होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी. सो आपका ग्राफ अब ऐसे जाएगा, राइट. तो आपका इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा, आपका एक एक्सिस फ्लिप हो जाएगा, ठीक है. कुछ समझ आई कि ग्राफ कैसे फ्लिप हुआ है हमारा? जी बॉयज. जी बॉयज, किधर गए हैं? आई गेस एबल टू हियर मी? अच्छा, ग्राफ की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई कि मैंने कैसे ग्राफ को प्लॉट किया है बिटवीन R1 एंड R2 over here, which was R1 is the ratio that नहीं, क्लोज्ड कॉलम से क्या मुराद है? जी अजवर. जी जी. नहीं देखो आप यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो आप बना सकते हो ना. यहाँ पे यू कैन जस्ट पुट इन द टेबल ओवर हेयर कि डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट आपकी ये रीडिंग्स आती जाएंगी, डिफरेंट रेशियोज आती जाएंगे. सो जस्ट मेक अ रफ टेबल ओवर हेयर बिकॉज अगैन दे जस्ट वांट टू why the table is important over here. The table is important to draw the conclusion. I just told you कि आपने टेबल में से ही conclusion को डिस्कस करना है, ठीक है, right. And I'm not just discussing the conclusion, I'm actually taking out this graph as well. ये ग्राफ भी मैंने इसी टेबल में से ही कंक्लूड किया है, ठीक है. बाय प्लॉटिंग दिस R2 एंड R1 एक रफ ग्राफ भी साथ ड्रॉ करके इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि सिंस इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन लैम्प सर्किट, right, over here has a direct effect on the resistance of this LDR, right. और उसका जो ट्रेंड है वो भी मैंने एक रफ ट्रेंड ड्रॉ कर दिया है, राइट. सो चार्ट आपके पास ये टेबल है, टेबल आपके पास मिनिमम टेबल की रिक्वायरमेंट बिल्ड करने की क्या होनी चाहिए, वो ये है कि जो चीज़ें आप, जो रीडिंग्स आप ले रहे हो इन दिस केस, राइट, इन विच यू हैव द एमीटर एज वेल एज द वोल्ट मीटर, राइट. तो दो रीडिंग्स आपकी ये होनी चाहिए, राइट. एंड सेकेंडली द थर्ड थिंग दैट वी आर एडिंग टू आवर सेल्स, जो हमने खुद यहाँ एक ऐड किया अपने ऑपरेटर्स के अंदर, दैट वाज अ पोटेंशियोमीटर. तो उसकी वैल्यू भी हमने वेरी करनी है क्योंकि हमने तो लाइट इंटेंसिटी के साथ उसको डिस्कस करना है एंड वी कैन नॉट डू सो विदाउट हैविंग दिस R2 वैल्यूज, राइट. ये रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा. तो यू कैन जस्ट मेक सेवरल लाइन्स ओवर हेयर, एटलीस्ट 5 रीडिंग्स शुड बी देयर, 5, राइट, to have a best explanation. Minimum 3 but at least 5. I would recommend कि आप ये छोटे छोटे 5 लाइन्स डाल दें, ठीक है. चार्ट को फिल नहीं करना, सिर्फ 5 लाइन्स डालनी है. एंड वाई 5, यू डू नो कि हम जब भी क्या कहते हैं इन फिजिक्स, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू गेट सर्टन वैल्यूज और हम उसकी एक्यूरेसी को डिस्कस करना चाहते हैं तो हम एटलीस्ट 3, 5 या 7 रीडिंग्स लेते हैं, राइट. सो ओवर हेयर 5 लाइन्स इज फेयर इनफ कि आप 1, 2, 3, 4 और 5 लाइन्स डाल दें कि आपके पास 5 डिफरेंट
वैल्यूज ऑफ R1 के लिए 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R2 निकल आएंगे, ठीक है, यूजिंग दिस वोल्ट एंड करंट रीडिंग्स, राइट। तो ये टेबल ही सब कुछ बता देगा फॉर टू दी एग्जामिनर, राइट। और साथ आपने इसको एक्सप्लेनेशन भी देनी है। अब वो जो नीचे लिखा है ना, एक्सप्लेन हाउ टू यूज द रीडिंग्स टू रीच ए कंक्लूजन, राइट। तो द टेबल इज एंटायरली अप टू यू। आप चाहें तो आप इसको ना भी रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, या आप इसमें से करंट को भी ना रिप्रेजेंट करें, वोल्टेज को भी ना करें, आप सिर्फ रेजिस्टेंस R1 और R2 कर दें, या आप R1 और वोल्टेज और करंट रिप्रेजेंट कर दें। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट द बेस्ट वे वुड बी कि आप जितने पॉसिबल आपकी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर दें, ताकि आप उनके दरमियान का कंक्लूजन ईजिली ड्रॉ कर सके खुद, राइट, बिकॉज योर एक्सप्लेनेशन मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे, वो जो अभी मैंने आपको बताया कि चेंजेस इन द रेजिस्टेंस लीड्स टू द चेंजेस इन द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब, which in turn resulted in variation of current and voltages in the LDR circuitry, which we noted down, and from there the ratio of the voltage and the current provided us the changes in the resistance of the LDR, which was affected by the intensity of light, right, the changes in the intensity of light. Any questions, any issues in this? हाँ, तो टेबल के ऊपर आंसर हो रहा है तो मतलब ठीक है, या मतलब ओवर राइटिंग को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? ओवर राइटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवर राइटिंग को आप अवॉइड ऐसे करें कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो चीज़ें हैं ना छोटी मोटी ऐसी, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना है, इसको इस किसी स्पेस में पेंसिल से लिख लो, ठीक है। सेकेंडली अपने जो ये प्रोसीजर है इसको भी किसी इसी सिमिलर स्पेस में कह लो कि जो वेस्टेबल स्पेस है आपके पास, राइट, उसमें कहीं पे ना पॉइंट्स की फॉर्म में, लेट्स से ये तो हमने पूरी स्टेटमेंट्स लिखे ना, यहाँ आप लिखो कि प्लेस LDR क्लोज टू लैम्प क्लोज टू LDR, ठीक है, एक ये चीज़ होगी, ठीक है। अटैच पोटेंशियोमीटर, ठीक है, टर्न ऑन द लैम्प एंड टेक रीडिंग्स, ठीक है, और फिर नाउ वेरी द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, आपको पता है कि आगे क्या होगा, टेक सेवरल रीडिंग्स। तो ये 5 पॉइंट्स आप लिख लो कि मैंने इन 5 को की पॉइंट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, फिर कंक्लूजन के लिए आप कंक्लूजन आपको पहले ही पता है कि क्या होगा, ठीक है, यू डू नो व्हाट द कंक्लूजन इज, ऐसे ही है कि नहीं। सर्किटरी देख के आपको पता लग रहा है कि कंक्लूजन क्या था, लाइट इंटेंसिटी चेंज होगी तो LDR के साथ क्या होगा, राइट, वी डू नो दैट। तो कंक्लूजन आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे A और V कैसे चेंजेस आएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने डाटा पॉइंट्स नहीं रिप्रेजेंट करने, तो बेस्ट वे इज कि आप छोटा सा एक ये जो हेडिंग है ना, इसकी हेडिंग टेबल की, वो भी किसी एक पार्ट पे ना, लेट्स से इस पेपर के ऊपर वाली जगह पे पेंसिल से लिख लो कि क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए कि नहीं, ठीक है। एंड इफ इट डज देन सिंपली नीट इट आउट, राइट। तो आप इसको फिर परमानेंटली रिकॉर्ड कर लें अपनी सारी चीज़ों को। गॉट इट? जी जी। सर ओवर राइटिंग मतलब हमारी नेगेटिव मार्किंग करेगी, मतलब हमारी मार्क्स घटेगी अगर हम थोड़ा सा नीचे लिखें नहीं, राइटिंग है अगर हमें जीरो। अगर आप स्पेस से राइटिंग स्पेस से नीचे चले जाते हो उसको ओवर राइटिंग कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव राइटिंग, राइट। नहीं, एक्सेसिव राइटिंग के मार्क्स की, ओवर राइटिंग तो होता है कि आप उसको एक्सेस, आप एक्सेसिवली राइट कर रहे हो, यू राइटिंग मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्सेसिव राइटिंग, एक्सेस, ठीक है। तो ओवर राइटिंग नहीं, ओवर राइटिंग के भी नहीं कटते और एक्सेसिव राइटिंग के भी नहीं कटते मार्क्स, बट अगेन इट्स अ बैड प्रैक्टिस। ट्राई टू बी एज एज शॉर्ट एज पॉसिबल। अगर आप ये देखें कि ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, ये बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने इसकी, ठीक है। ये एक लाइन में ये आ गया, अबाउट 5 to 6 लाइन्स में ये आ गया, आपके पास टोटल आई थिंक 12 to 15 लाइन्स होती हैं, ठीक है, कुछ में ज़्यादा भी होती हैं। आई थिंक कि इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा थी, ठीक है। आई विल ओपन अप द पेपर एज वेल, कि अगर ये पेपर मेरे पास हो, ये बेसिकली लेट मी जस्ट सी कि कितनी लाइन्स उन्होंने दी हैं। जी जी। हाँ, प्रिकॉशंस देखो, नंबर 1 जो अभी मैं आपको प्रिकॉशंस की एक बात कर रहा था कि हमने एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं की, वो क्या थी कि लाइट जो इंटेंसिटी है वो रूम की भी तो वेरी कर सकती है ना, है कि नहीं।
जिस रूम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या जिस लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पे भी तो इंटेंसिटी चेंज हो सकती है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट आप इसको ना इसी तरह, अब सर्किटरी जिस तरह मैं यहाँ रीड्रॉ करता हूँ, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा गंद मच गया है. तो ये आपके पास ये एलडीआर आ गया, ठीक है. अ, ये आपका एलडीआर, ठीक है. ये आपका एमीटर, ये आपकी पावर सप्लाई, राइट. और यहां से आपने एक वोल्ट मीटर निकाल लिया बाहर, राइट. ओके. अच्छा, इसी तरह फिर आपने यहां पे एक अदद लैंप ड्रॉ किया, इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया या पोटेंशियोमीटर लगाया, ठीक है, और ये रखा. अब आप क्या करो, एज प्रिकॉशन आप यहां ना एक ये नजर आ रहा है डॉटेड लाइन, ठीक है. लेट मी जस्ट यूज द ब्लू वन, राइट. एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है, डैशेस में. और ये आप इसको एज प्रिकॉशन रिप्रेजेंट करो, ठीक है, कि दिस इज क्लोज्ड बॉक्स विद वायर्स कमिंग आउट, ठीक है. अब इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा कि आपकी जो रूम की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी है, वो मैटर नहीं करेगी अब, ठीक है. वो अगर अब वेरी होती है, लेट्स से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद क्लाउडी हो गया, आप एक्सपेरिमेंट रन कर रहे थे, दो रीडिंग्स आपकी रूम की इंटेंसिटी कम हो गई, फिर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो दैट मे रिजल्ट इन द वेरिएशन ऑफ योर आंसर्स, राइट. तो ये अगर आप क्लोज बॉक्स भी डिस्कस कर देते हो, और इसको अपरेटस में, जो मैं भी कह रहा था कि अपरेटस में एक लाइट बॉक्स आप यहां डाल दें, ठीक है, कि लाइट बॉक्स हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम ये लैंप और एलडीआर को प्लेस करेंगे, बाकी की सर्किटरी हमारे पास बाहर होगी. ऑब्वियसली वोल्ट मीटर और एम मीटर आप रीड नहीं कर सकते अगर वो बॉक्स के अंदर होगा, राइट. यू हैव टू क्लोज द बॉक्स, राइट. तो अब आपकी जो इंटेंसिटी एलडीआर की है वो इंटायरली डिपेंड करेगी इस लैम्प की लाइट के ऊपर. उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की लाइट से इफेक्ट खत्म हो जाएगा. तो दैट्स द प्रिकॉशन दैट वी मस्ट एंश्योर. सेकेंडली आपका जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं करना चाहिए. तो दो आपकी जो है इसमें प्रिकॉशंस हैं. सेकेंड, थर्ड प्रिकॉशन आप क्या दे सकते हो, टेक सेवरल रीडिंग्स, ठीक है, ऑफ वोल्ट एंड एम्पेयर मीटर, राइट. और थोड़ा स्टेडी होने दें, फौरन से ना करें. गिव सम टाइम फॉर द एलडीआर टू एडजस्ट टू द न्यू लाइट इंटेंसिटी. रिमेंबर कि ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है. बट you will let the value of the voltmeter and ampere meter to stabilize before recording it. तो तीन मेजर प्रिकॉशंस हैं जो आप यहाँ ले सकते हो, राइट. तो what including any precautions to have reliable results, all three of them will help you ensure that your results are reliable. ठीक है, कुछ समझ आई बात की? Okay. Any objections to this light box that I added to this? कुछ समझ आया कि लाइट बॉक्स का क्या बेनिफिट होगा हमारे पास? तो एलडीआर में अगर आप लाइट बॉक्स ऐड करते हो तो इट्स अ वेरी गुड प्रिकॉशन, ठीक है. और ये आपके जो जो कह लो कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सट्रीमली एक्यूरेट कर देगा, एक्सट्रीमली एक्यूरेट कर देगा. क्योंकि जब आप देखो लाइट बॉक्स से बाहर काम कर रहे हो ना, तो आप भी मूव कर रहे हो, तो आपका भी जो एक एम्बियंस है ना, रिफ्लेक्टिविटी जिसको ऑक्लूशंस कहते हैं, तो ऑक्लूशंस की वजह से आपकी जो लाइट की जो एलडीआर के ऊपर जो लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है वो वेरी कर रही होगी, ठीक है, बिट बाय बिट. सो दैट इज ऑल्सो a precautionary measure that you can take to improve your results, or you can say the best result would be using this light box. Got it? Should we move on to the next question now? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बीम बैलेंसिंग का, ठीक है. ओके. इन द बीम बैलेंस a student investigates the force required to break different beams, right? So force required to break different beams, right? हमें force calculate करनी है. Made from mixture of sand and cement, all beams have the same cross section area. That means कि इनका cross sectional area same है. Plan an investigation to identify the force required to break the beams, कि कितनी force पे different mixers break होंगे, ठीक है, different ratio जिसको हम कहते हैं ना sand to cement ratio, ठीक है. Okay. Following operators is available: a selection of beams, right, made from different ratios of sand and cement and various lengths, right, कि उनकी लेंथ भी वेरी कर रही है और उनकी रेशियोज भी वेरी कर रही हैं, which over here this length might
pose some issues in our evaluation, right? So we need to understand कि हमने इसके साथ कुछ करना है, ठीक है? Okay. Triangular blocks to support the beams, right, which we have. Okay, a meter rule. मीटर रूल किस लिए? ताकि हम चीज़ों को मैयर कर सकें, डिस्टेंसेस मैच कर सकें. एज सिलेक्शन ऑफ लोड्स, राइट, दैट मीन्स कि लोड भी हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है. ओके, यू कैन ऑल्सो यूज अदर अपरेटस एंड मटेरियल्स दैट आर यूजली अवेलेबल इन स्कूल लेबोरेटरी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हम एक एडिशनल एपरेटस में एक चीज़ हम ऐड करेंगे, ठीक है, एपरेटस के अंदर, जो कि हमें रिक्वायर्ड है किसके लिए? इस लोड को. क्योंकि लेट्स से एक लोड के ऊपर लिखा हुआ 50 ग्राम, लेकिन अगर वो 50 ग्राम है ही नहीं, ठीक है, लिखा तो कुछ भी हो सकता है द मैस इज इनएक्यूरेटली मार्क्ड. तो हम खुद से एक दफ़ा लोड को, या जो हम मैस इसके ऊपर रखेंगे लोडिंग के लिए, उसको एक दफ़ा खुद से मैयर भी करेंगे टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ आवर रिजल्ट्स, राइट? ओके. The student takes all necessary precautions. You are not required to write about safety precautions, right? कि इसमें safety issues क्या होंगे? Remember, एक चीज़ होती है सिर्फ precautions, एक चीज़ होती है safety. Safety means कि क्योंकि यहाँ ब्रेकेबल आइटम है, कंक्रीट ब्रेक हो रहा है, सो आपने सेफ्टी को डिस्कस नहीं करना, ठीक है, कि जी बीम आपके पैर पे ना गिर जाए, आप अपने सर पे ना मार लें लोड, ठीक है, सर ना फाड़ लें. तो दिस काइंड ऑफ सेफ्टी इश्यूज यू आर नॉट सपोज टू बी डिस्कसिंग. बट रिमेंबर, सेफ्टी प्रिकॉशन इज अ डिफरेंट वर्ड, एंड इन द प्रीवियस वन वी वर टॉकिंग अबाउट प्रिकॉशंस. ठीक है, यहाँ प्रिकॉशंस रिजल्ट से रिलेटेड हैं, यहाँ जो प्रिकॉशंस की बात कर रहा है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात कर रहा है. सो रिमेंबर, दीज टू आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स. when they use the word only precaution, that refers to your results, and when they use the word safety precautions, that means के safety measures, right? So I will write this over here. These are safety measures. ठीक है. Basically we use the term safety measures for this kind of terminology. यहाँ पे confusion create हो जाती है. So whenever the word safety precaution is used, always refer to safety measures, right? And we're not supposed to be discussing that. And whenever they simply say precautions, that refers to results, right? Has the reference of results. Got it? जी boys, खामोशी छा गई है, क्या हुआ? गले बंद हो गए सारों के? Okay. Okay, explain briefly how to carry the investigation. Okay. State key variables to keep constant. Draw a table or table column headings to show how you're going to note this, how you're going to record this, and explain how you would use your readings to reach a conclusion, right? So, अब हम, अच्छा, इसमें I'm not going to draw any I'm just going to draw one diagram, right? Perhaps two in that regard, right? So I'm just going to take this beam, I'm going to put this, I'm going to put load, I'm going to take another beam. बट रिमेंबर कि ये जो आपका डिस्टेंस है ना इनका, ट्राइंगल बीम्स का, ये सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे मैं थोड़ी लॉन्गर बीम रख रहा हूँ, ठीक है. वाई? बिकॉज यहाँ पे मैंने अभी ये आपको स्टार्ट में कहा था कि ये वेरियस लेंथ वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है. और आपका लोड, राइट, तो आपने यहाँ ऊपर बनाना है एक अदद मीटर रूल, राइट, इसको आप कह देंगे मीटर रूल. एंड वाई द मीटर रूल? अब यहाँ पे जब आप अपना प्रोसीजर डिस्कस करेंगे तो की वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा? की वेरिएबल टू बी फिक्स्ड. तो आपके जो फिक्स्ड वेरिएबल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट fixed variable होगा the distance between these triangular blocks, let's call it A, and the distance from the triangular block, इसको let's call it B. तो आपका fix A and B, right, for all ratios and lengths ऑफ बीम्स, राइट. सो ये डायग्राम अगर आप छोटी सी इसके साथ बना लेता है तो आपकी एक्सप्लेनेशन कम हो जाती है. अगर आप एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप लिख भी सकते हैं इसको. मैंने इसका एक सोल्यूशन अली सफ़ान को भेजा था जिसमें मैंने डायग्राम्स नहीं ड्रॉ की थी. मैंने ये वर्बली डिस्कस किया था कि ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान वो आपने सेम रखना है, और जो आपका लोड है वो सेंटर में होना चाहिए, उसका डिस्टेंस भी फिक्स होना चाहिए. क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो वो ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में कह चुका है कि वो फिक्स ही है, तो उसको हमें फिक्स वेरिएबल में डालने की ज़रूरत नहीं है. डाल सकते हैं तो डाल दें, डजंट मैटर,
बट दीज टू वेरिएबल्स नीड टू बी फिक्स्ड, क्योंकि अगर आप डिफरेंट लेंथ्स के ऊपर मैं डिफरेंट ट्राइंगुलर बीम्स डिफरेंट एरियाज में रखूंगा तो आपका एक्सपेरिमेंट वेरी कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इज अ ह्यूज डिफरेंस कि अगर मेरे पास एक लॉन्गर बीम है, ठीक है, और एक को मैं यहां से सपोर्ट करता हूं, ठीक है, और एक को मैं यहां से सपोर्ट करता हूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा लोडिंग का? जी, कैन एनीवन एक्सप्लेन क्यों ये हमने लेंथ वेरी नहीं करनी ब्लॉक्स की, जबकि बीम हमारे पास छोटी बड़ी आती जाए, हमने ये जो डिस्टेंस है जिसको मैंने ए कहा है इसको फिक्स रखना है? क्यों फिक्स करना ज़रूरी है? ये क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि हमने सिर्फ लोड का इफेक्ट देखना है इसमें। यस, इस तरह से लेंथ का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. दैट मीन्स कि आपके पास क्योंकि ये बेंडिंग फोर्स होगी ना, सो इट विल हैव सम टॉर्शनल इफेक्ट एज वेल. तो वो टॉर्शन को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते. फॉर अ लॉन्गर बीम दैट इज गोइंग टू बी मोर ट्रबलसम, राइट, कि बीम अपने वजन से टूट जाएगी. समझे हो कि नहीं? विद अ लेसर लोड. तो हमारा जो लोड का और बीम स्ट्रेंथ का, क्योंकि हमने अब बात करते हैं टेबल की, इसलिए मैंने कहा था कि आपने हमेशा रफ टेबल बनाना है. तो अब यहां बनाएंगे सीमेंट वर्सेस सैंड, राइट, जो भी आपका रेशियो है, ठीक है, वर्सेस द लोड दैट यू आर हैविंग, ठीक है, कि कितना लोड है. और यहां आप इसका लिखोगे स्टेटस ऑफ इंटेग्रिटी, राइट, क्योंकि और तो आपके पास कोई चारा है ही नहीं इसमें. तो आपके पास ये तीन ही चीजें बनती हैं. तो हर रेशियो के ऊपर, अच्छा, अब यहां पे जो कॉलम है इसके अंदर सब कॉलम्स भी आएंगे. लेट्स से एक ये बड़ा कॉलम और इसके अंदर ये सब लाइंस आप ड्रॉ करोगे फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ लोड्स, ठीक है. तो आप इसको कह लो कि L1, L2 और L3. लेट्स से यू कैन से इंटैक्ट, राइट, यहां आप स्टेटस में अगर फिल कर दें इंटैक्ट और ब्रोकन, राइट, कि किस लोड पे जाके ब्रेक हुई. इसी तरह आप इसको कह दें कि लेट्स से 1:2 का सीमेंट था, फिर 1:3 की बात करते हैं, ठीक है. इसमें सैंड ज़्यादा है, सीमेंट कम है, राइट, दिस वुड बी अ लिटिल वीकर. सो अगेन L1, L2, L3. तो यहाँ पे आपके पास इंटैक्ट आ गया, ठीक है. ये यहाँ पे ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है. और इसको आपको टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी इट ब्रोक. सो वी डोंट नीड टू पुट दिस. सो आप यहाँ इसको NA लिख सकते हैं कि नॉट एप्लीकेबल. वाई? बिकॉज द बीम इज ऑलरेडी ब्रोकन एट लेसर वेट, राइट. तो दिस is how you're going to represent your possibility of data, right. अच्छा, यहाँ पे इसको fill मैंने क्यों किया है? क्योंकि the question is very odd, right. ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है कि इसमें कोई जेनेरिक वेरिएबल्स नहीं है जिनको आप कंपेयर कर सकते हो. यहाँ पे आपको उसका इंटेग्रिटी टेस्ट करना है, ठीक है. तो वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बीम. तो वो आपको कैसे पता लगेगा कि कितने फोर्स में ब्रेक हुआ है? वो डेफिनेटली जब बीम ब्रेक होगी तभी पता लगेगा, ठीक है. आप लोड इंक्रीज करते जाओगे इंक्रीमेंटल, तो आपका किसी एक पॉइंट पे आके जो आपका बीम है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है. एंड दैट्स व्हेन यू विल नोट कि इस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है और ये इस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है. गॉट इट? In this case the L3 was the problem, at this case L2, load 2 was the value at which it was measured. और यहाँ पे लोड को आप कह सकते हैं कि ये न्यूटन्स में है और वो क्या होगा? वेट के इक्वल होगा, राइट. इट वुड बी एक्चुअली W इज इक्वल टू M इंटू जी, राइट. सो ये आपका क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा. तो जितना आप मैस ऐड कर रहे हैं वो आप डालते जाएंगे. अच्छा, अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की, राइट. तो इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल सी होगी, ठीक है. जिसमें हमने इसको कर लिया, ड्रॉ अ टेबल हो गया, ठीक है. एक्सप्लेन हाउ यू विल डू दिस. अच्छा, प्रिकॉशंस नहीं है. अच्छा, ऑपरेटर्स हमने लिख दिया. हमारे पास ये और ये रह गया, एक्सप्लेनेशंस रह गई हैं. तो अब इसकी बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है. आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन हाउ वी विल कैरी आउट दिस. कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्या कहते हैं, set up the beam, the triangular supports, as well as the loading as shown in the figure, right? Ensuring that the triangular blocks are equidistant in every test, while the load is always placed in the center, right? Okay, in the middle of the beam, right? अच्छा, secondly, ये आपके जो distance है ये भी obviously same होना चाहिए साइडों से. Let's call it C, कि ये भी equidistant होना चाहिए. center
के अकॉर्डिंग आपकी ये सपोर्ट्स लगनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, विथ ईच बीम increase the load in an incremental manner and record the load in the table, right, shown, and the moment upon the load at which the beam breaks, record that as the breaking force, right. So this is how you will explain this in 3 to 4 lines. इसकी explanation ज़्यादा नहीं बनती, ठीक है। रीज़न बीइंग कि आपका टेबल ही सब कुछ बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो टेबल को आप इस तरह से जेनेरिकली फिल कर सकते हैं, जस्ट टू गिव एन आइडिया, राइट, कि डेफिनेटली जब आपका सीमेंट टू सैंड रेशियो इज हाई तो आपका बीम की स्ट्रेंथ बहुत हाई होगी। जब आप सैंड बढ़ाते जाते हैं तो आपका सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाती है। सो इट विल ब्रेक ऑन अ लेसर लोड। आप यहाँ पे नीचे 1/4 का भी एक बना सकते हैं। रिमेंबर कि ये सेम रेशियो है, तो यहाँ पे आपने इसकी 3 लाइंस नहीं ड्रॉ करनी, आपका लोड के अंदर सब सेक्शंस होंगे। तो इसका जो टेबल बनता है वो बहुत यूनिक बनता है, ठीक है। इट्स अ वेरी ऑड एंड यूनिक टेबल दैट यू नीड टू बिल्ड फॉर दिस वन। गॉट इट? अच्छा, अब बात करें कि कंक्लूजन की, कि हाउ वी विल कंक्लूड, जस्ट बाय द इंटेग्रिटी, ठीक है। जब तक आपका इंटेग्रिटी के साथ बीम अवेलेबल है तो ठीक है, इट्स फाइन इफ इट्स इंटैक्ट। व्हेन इट्स ब्रोकन देन यू कैन कंसिडर दैट एज अ ब्रेकिंग लोड, राइट। तो आपके लिए कंक्लूजन ड्रॉ करना भी आसान हो गया क्योंकि आपका टेबल ही एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है, राइट। अगेन रेफर टू द टेबल इन योर एक्सप्लेनेशन and suggest that when the beam is intact, then that's the load bearing capacity of the load, and when the beam breaks on the next load, that's when we record it as the breaking force required to break the beam. ठीक है? Understood? जी boys, कुछ समझ आया? Are we through with this? Okay, all right. ओके यहाँ पे हमने एक ये देख लिया, जनरल मेजरमेंट देख लिया, ठीक है, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम देख लिया, एक हमने इलेक्ट्रिकल का देख लिया, ठीक है। फिर हमने ये देख लिया क्या कहते हैं, एक यूनिक क्वेश्चन बीम ब्रेकेज का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा इसमें तो मेरे पास इतने ही मैंने 3 क्वेश्चंस डाले थे यहाँ पे। अच्छा, देन सम ऑफ दीज पेपर्स actually have some ray diagrams, right? तो I wanted to discuss some ray diagrams. अच्छा, ये टेबल भी है आपके पास which you can plot and work on, right? तो let's get to this circuitry. ये वाला मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया हुआ है, if I reckon, ठीक है। आई थिंक ये पेपर आप लोगों ने किया था, या हमने ये पेपर, ये शायद उसमें आया हुआ था आपके ना, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट मॉक में था, ठीक है। सो let me get to the ray diagram. Yes, here's the ray diagram, ठीक है। अच्छा, एक ये रे डायग्राम वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको डील करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्नैप दिस डायग्राम, राइट, पेस्ट इन नोटबुक। किधर डाल दिया भाई आपने? ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी वेयर डिड इट प्लेस द डायग्राम। ओके, ऑलराइट, ओके, हियर्स आवर डायग्राम, राइट। और इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट टेक द एक्सप्लेनेशन एज वेल कि करना क्या है। अच्छा, ये हरकतें हमने इसके साथ करनी है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, रिमेंबर टू फॉलो दी स्टेप्स वेरी वेरी एक्यूरेटली, ठीक है। ओके, बाकी क्या इसका हिस्सा, ये ओह देयर इट इज। ओके, हमने D1 तक किया था। ओके, लेट्स गेट बैक टू वर्क। अच्छा, अब हम करना क्या चाह रहे हैं इसके साथ, लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ दिस, राइट। इसको हम निकालते हैं, ये अब साइड पे ले आते हैं सो दैट वी कैन इजीली वर्क विद दिस। गॉट इट? अच्छा, अब ड्रॉ अ लाइन एट द सेंटर ऑफ AB, right, continuous to the normal so that it reaches the bottom of the ray trace sheet. Label the normal NL, right. अच्छा, इसके मिड से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। अच्छा, AB continue the normal so that it reaches the bottom of the ray trace sheet. So I'm just going to take this center, right,
एक्सपेक्टेडली, और इसको बॉटम तक मैं नीचे तक ले गया, राइट। ओके, ओके, ये आ गया। नेक्स्ट, लेबल द पॉइंट क्यू वेयर एन एल क्रॉसेस ए बी, राइट। अच्छा, ये अब आपके पास, सॉरी, इसको मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड भी करना था, ठीक है। ओ भाई सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, ऑलराइट, ये ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लेबल कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से दिस इज एन, दिस इज एल, एंड दिस इज पॉइंट क्यू, राइट, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू नाउ टेक दिस हाईलाइटर, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्यू आ गया। ओके, अच्छा, फर्दरमोर हमने इसके साथ क्या करना है? अच्छा, हमारा ये पार्ट तो हो गया, 1 मार्क डन। ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू सी डी, ठीक है, पैरेलल टू सी डी विच इज 2 सेंटीमीटर बिलो सी डी, राइट। नाउ 2 सेंटीमीटर, नाउ दिस इज अगेन, आई डोंट हैव द स्केल फॉर दिस, सो इट वुड बी बेटर कि मैं अगर इसको एनोटेटर में ले जाऊं। जस्ट अ मिनट, इफ यू गाइस हैंग ऑन फॉर अ सेकंड। जी, आवाज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, क्या हुआ है? सारे गुम हो गए हैं या नींद आ गई है? लोरी तो नहीं दे रहा किसी को? जी बॉयज़, किधर गुम हो गए हो? सर इधर ही है। इधर ही है, सब कुछ इधर है। पक्की बात है? लग नहीं रहा यार, बेहोशी का आलम चल रहा है। ओके, यहाँ पे अच्छा एनोटेटर मैं इसलिए यूज़ करना चाह रहा हूँ बिकॉज दिस हैज़ वैल्यूज़ ना, ठीक है। तो ये इतना है, ठीक है, और राइट। ओके, 73, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए 73 का हाफ क्या होगा हमारे पास? जी, 73 का हाफ क्या होगा? ओके, 36.5। 36.5, वेरी वेल सेट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसा बन गया। ओ ओ, ये आ गया 36.5, राइट। ओके, अब हम इसको यहाँ पे इसको n कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं l, और ये हमारे पास आ गया पॉइंट q, वही काम जो हम पहले कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज 2 सेंटीमीटर्स बिलो। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर्स कैसे हमें पता लगेगा कि हम यहाँ से ये 20 मिलीमीटर निकालते हैं। ओके, वी zoom it in a little bit। यहाँ से इस लाइन से 20 mm की आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, वर्टिकल, एक ये, राइट। और इसी के पैरेलल अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, राइट। अच्छा, ये अब आपकी लाइन आ गई, ठीक है। गॉट इट, दैट मीन्स कि वो पॉइंट पी में से ही गुजरेगी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू erase दिस एंड आई एम गोइंग टू मेक अ लाइन गो थ्रू पॉइंट पी, सॉरी, मोर एक्यूरेटली। यार, बिल्कुल सेंटर नहीं पकड़ रहा उसका, बाकी सब कुछ पकड़ रहा है। ओके, देयर वी गो, राइट। ये आपकी 2 सेंटीमीटर की लाइन लगी, ठीक है। नेम दैट एज ई एन एफ, राइट। सो लेट्स कॉल दिस एज ई, लेट्स कॉल दिस एज एफ, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, दिस इज डन। साथ साथ टिक करते जाए करें कि क्या क्या आपने काम कर लिया। लेबल द पॉइंट जे वेयर एन एल क्रॉसेस ई एफ, ठीक है। अब इसको हम जे कह देते हैं, इस पॉइंट को, राइट। दिस इज नाउ पॉइंट जे, हम इसको, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर जे एंड दिस पॉइंट इज फॉर क्यू, राइट। ओके, और ये यहाँ पे पॉइंट 3 में से भी गुजर रही है फॉर सम रीजन, राइट। ओके, नाउ this is also done, right. Draw a line GH parallel to CD, GH parallel to CD, okay. Now this is GA CD, and we have to draw a parallel line
to this 7 centimeters below CD. Now we need to take अच्छा यहाँ पे मैं ये कुछ मेजरमेंट टूल्स अपने बना रहा हूँ, सो डोंट माइंड कि मैं क्यों लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ एडिशनल, ठीक है। तो मुझे 7 सेंटीमीटर्स जाना है, तो दैट वुड बी 70 mm, राइट। अच्छा अब मुझे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, देयर वी गो, राइट। ये हमारे पास अब वो लाइन आ गई जो नेक्स्ट हमें ड्रॉ करनी थी, विच वॉज दिस सी डी 7 सेंटीमीटर्स बिलो और ये 2 सेंटीमीटर्स बिलो, राइट। तो हमने ये डिस्टेंसेस के हिसाब से रखा। अच्छा लेबल पॉइंट के वेयर एन एल क्रॉसेस जी एच। अच्छा यहाँ पे हम इसको के कह देते हैं। एन एल माइंडेड ये वर्टिकल वाली लाइन जो है ये हमारे पास है। सो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस कि ये अब आपके पास पॉइंट के आ गया, ठीक है। और इसको हमने लेबल करना था जी और एच, राइट। लाइन थी हमारे पास, करेक्ट। अच्छा ये ग्रीन लाइन को ओमिट कर दें, ग्रीन लाइन सिर्फ मेरा रेफरेंस पॉइंट है, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज अ रेफरेंस, राइट। सिमिलर वे यहाँ मैं एक और ग्रीन लाइन ड्रॉ करूँगा जस्ट टू आइडेंटिफाई कि मैंने ठीक ड्रॉ किया है कि नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू बी एन एक्यूरेट सोल्यूशन। यस दैट इज ऑल्सो 3 mm, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट ड्रॉ, अब हमारे पास ये हो गया पॉइंट के हमने कर लिया, जी एच हमने कर लिया, जे और ई एफ, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर्स पे 7 सेंटीमीटर्स पे। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन पी क्यू एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द नॉर्मल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नॉर्मल अबव द ब्लॉक, राइट। अच्छा 30 डिग्रीज टू द नॉर्मल, अब ये गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में 30 डिग्रीज पे एक ड्रॉ करना है, राइट। सो अच्छा व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज दैट जो मेरे पास एनोटेटर है ये 0 से ही शुरू करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये 90 आ गया, तो 90 प्लस 30 कितना बना 120, तो मुझे 120 पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट टू सेटिस्फाई व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, राइट। लेट मी चेंज द कलर टू ब्लू, ओके। ये अब आपका आ गया 30 डिग्रीज। यहाँ पे आप इसको चाहे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर, राइट। कि ये आप एंगल थोड़ा सा, अगर आपकी एनल ये लंबा हो तो आप यहाँ से इसको कह दें कि ये 30 डिग्रीज पे आ गया, ठीक है। फ्रॉम दिस नॉर्मल, नॉर्मल से लेफ्ट पे ड्रॉ करना था हमने, राइट, दिस वर्ड। तो लेफ्ट पे हमने 30 डिग्रीज पे ये ड्रॉ कर दिया, ओके। नेक्स्ट हमने क्या करना है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन, अनदर मार्क डन, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया, ओके। The student places two pins P1 and P2 on line PQ, right? So this is let's say P, right? Point P. अब यहाँ पे वो दो पिंस रख रहा है P and Q। अच्छा एक हम यहाँ पे P1 कर लेते हैं और यहाँ पे हम P2 कर देते हैं, दो पिंस हमने रख दी, राइट, ओके। And is not drawn to full size, suggest a suitable distance apart for P1s and P2, right? इन दोनों के दरमियान कितना होना चाहिए, and that in my opinion is actually supposed to be at least 5 centimeter, at least, right? Or we can say greater than 5 centimeter, right? Why? Because for these optical questions, optical ray tracing diagrams, it is a standard method that the pins should be at least 5 centimeters from one another, right? Only then we can have a good value. In this case, which is not right now, क्योंकि मैंने ये लाइन बहुत एच से मुझे ड्रॉ करनी चाहिए थी। Let's say this is 5 centimeter. अच्छा, nonetheless, it's not possible on the diagram page, but it's still asking as a precaution. So it doesn't matter what the diagram is saying, but we need to just suggest, right? तो हम सजेस्ट करेंगे कितना, ठीक है, कितना होना चाहिए इतना। द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स P1 P2 थ्रू CD, शी पुट्स हर लाइन ऑफ साइट until appears to be behind one another, she places pin 3 on line EF and a pin 4 on GH, right। ये अब हमारे पास उसने pin 3 and pin 4 अटैच की, keeping that these are matching these, right, उसको एक जैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। On figure, measure the length A of the line J to P3, right? From J, this point J to P3, measure the line, what is the distance, we can measure it,
right? It is actually 23.5. So this is 2.3 centimeters, right? So I will take it as uh, 2.3 centimeters, right? Okay. Now, uh, on figure 3.1, measure the length B, which is K to P4, right? इस K से P4 की लेंथ अब आपने मेजर करनी है, एक ये और एक ये मेजर की, ठीक है? So let's measure this as well. This is about 52.4 millimeters, or what we can say 5.2 centimeters, because this works in millimeters. So this is 5.2 centimeters, right? Okay. Calculate B over A, right? So it's a ratio. We can simply calculate this. So it would be 5.2 divided by 2.3, right? So it's 2.26. So it would be 2.26, right? So this is done, this is done, this is done, right? अगैन इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं क्योंकि दिस मे नॉट बी द एग्जैक्ट सेंटर, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की थी, राइट? सो देर माई बी सम एरर्स क्योंकि आई एम वर्किंग विदाउट द स्केल ओवर हेयर, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द स्क्रीन, सो द एरर्स मे बी देयर, राइट? Just to give you an idea how to approach this question, right? State one precaution that you would take in this type of experiment in order to produce an accurate ray trace, right? वही जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट अभी डिस्कस किया था कि की पेन्स यहाँ पे हम इसको वी कैन नोट इट आउट ओवर हेयर दैट, राइट, कि कीप पेन्स एटलीस्ट 5 centimeter apart. So that's the precaution that we can suggest, right? पेन को एक्यूरेट लगाना, सीधे लगाना, बाकी चीज़ें आ सकती है, बट क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं डिस्कस्ड, अगर तो ये क्वेश्चन में डिस्कस्ड हो तो फिर ये आपकी प्रिकॉशन नहीं बनती, फिर यू हैव टू लुक फॉर अनदर प्रिकॉशन. बट ओवर हेयर मोस्टली जब भी ये रे ट्रेसिंग का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये प्रिकॉशन आपकी मैंडेटरी है कि आपकी जो पिन्स हैं वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर अपार्ट हों, एटलीस्ट. इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, बट 5 सेंटीमीटर अपार्ट. सेकंड क्या हो सकती है, डू नॉट टच पिन्स टू ग्लास स्लैब, राइट? क्योंकि वो ग्लास स्लैब देख रही है, और अगर ये मिरर का केस होता तो फिर आप मिरर लिखते हैं, ठीक है? सो ये कॉमन मैं बता रहा हूँ कि ये दीज टू प्रिकॉशंस आर कॉमन फॉर ऑल रे ट्रेसिंग क्वेश्चंस, राइट? चाहे वो किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो. ओके. अ स्टूडेंट प्लान्स टू टेस्ट द सजेशन दैट in this experiment V by A is a constant for all possible values of I, right? List the suitable values of I that student could use, right? Okay. अब आपके पास I is 30 degrees. वो कह रहे हैं कि आप जितनी मर्जी I की वैल्यूज ले लो. लेट्स से अगर आप इस एंगल पे देखो, राइट, व्हाट ही इज एक्चुअली ऑब्जर्विंग थ्रू दिस इज कि अगर आप ये देखें कि ये आपका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है, राइट, ये, राइट, तो आप जितना मर्जी इसको टर्न करते जाएं, आपके पास जो आई की डिफरेंट वैल्यूज हैं उसके लिए आपके पास जो आप जिस मर्जी एंगल पे उसको व्यू करते जाएं तो आपके पास जितनी भी ये रेशो निकलेगी वो सेम निकलेगी, बी ओवर ए की रेशो. दैट मीन्स कि जब आप इसको लेट्स से डिफरेंट एंगल पे व्यू करेंगे तो आपकी पेन 3 यहाँ आ जाएगी, पेन 4 यहाँ पे चली जाएगी, राइट, इन पोजिशन पे. अच्छा, अगर आप इसको लेस देन 30 डिग्रीज पे व्यू करते हैं ऐसे, तो फिर आपकी पेन 3 यहाँ आ जाएगी और पेन 4 यहाँ पे आ जाएगी. तो अगर आप इसका और इनका रेशो देखें तो वो तकरीबन उसी तरह वेरी कर रहा है जिस तरह P3 और P4 का कर रहा है, राइट? तो ऑन अ सिंपलर पेज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ इट हैज़ बिकम वेरी कंजेस्टेड. ओके, लेट्स से आपके पास ये ब्लॉक था ना, तो इसमें से आप जिस मर्जी एंगल पे देखते रहो, जो आपकी पेन 3 है फ्रॉम दिस नॉर्मल, ये जो आपका एक नॉर्मल लाइन आ रही है, वो डिफरेंट एंगल्स पे जो एंगल आपका व्यू एंगल पेन 3 और पेन 4 का होगा, राइट,
उसी हिसाब से आपकी जो व्यू व्यू है वो आपका चेंज होता जाएगा यहाँ पे, राइट, विच वुड बी हेयर एंड हेयर, राइट, सॉरी ये नॉर्मल आपका यहाँ होना चाहिए था, गॉट इट, ये वाला नॉर्मल, राइट। तो जितने आपके एंगल चेंज करते जाओगे यहाँ पे इनके दरमियान आपस में, उतना ही आपका ये P3 और P4 का जो रेशियो है वो चेंज होता जाएगा। क्या आप इससे एग्री करोगे? यस, आई वुड टोटली एग्री टू दिस कि दिस इज पॉसिबल। रीजन बीइंग कि आप जैसे जैसे अपना व्यूइंग एंगल चेंज करते जाओगे आपकी P3 और P4 की पोजीशन भी साथ साथ कॉन्सिक्वेंटली चेंज होगी, और उनके दरमियान जो क्या कहते हैं जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है। ये जो B/A का रेशियो है वो मोर और लेस इतना ही रहना चाहिए। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, कौन कौन सी हो सकती हैं? तो आप 30 डिग्रीज यूज कर रहे हो, तो अगर आप कम एंगल भी यूज कर लो तो इट इज पॉसिबल। तो यू कैन यूज एक्चुअली ओवर हेयर 15 डिग्रीज कर लो, राइट, 45 डिग्रीज कर लो, राइट, एनीथिंग बिलो 90 डिग्री, राइट, एंड ग्रेटर देन 0 डिग्रीज, इनके दरमियान जितनी वैल्यूज हैं वो सारी आप यूज कर सकते हो व्यूइंग एंगल के लिए, बट ऑब्वियसली हैव अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 10 to 15 डिग्रीज सो दैट यू हैव बेटर रिजल्ट्स, राइट। 60 कर लिया, 75 कर दिया, राइट। सो ये लेस देन और ग्रेटर देन के आप ब्रैकेट के थ्रू आप इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, राइट। तो दीज आर द पॉसिबल सूटेबल वैल्यूज। अच्छा, 90 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 90 पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और जीरो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एट जीरो आपका जो व्यूइंग एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट से मुराद है कि पेन 3 और पेन 4 एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, तो आपका जो रेशियो है ये B/A ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ 90 इट विल ऑल्सो एरेटिकली चेंज। सो आपका 90 डिग्रीज और 0 डिग्रीज के अलावा बीच के जितने एंगल हैं उन पे आप व्यू कर सकते हो, ठीक है, जिसमें से हमने 30 के ऊपर रखा था, आप 15, 45, 60, 75 भी रख सकते हो, ठीक है। सो दिस यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये क्यों हम 90 और 0 नहीं करेंगे। गॉट इट? एनी ऑब्जेक्शंस ओवर हियर? एनीवन? नो सर, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। ओके okay. और कोई कंफ्यूजन, कोई और क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में हो? नहीं सर, सही है। ओके okay. चलो इसका एक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि इसका क्या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है। थर्मल वाले जरा इजी हैं, ठीक है। ओके, लेट्स गो विद दिस। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ कूलिंग, investigates the rate of cooling in air of a heated block made of different metals, right? Okay, the temperature of each block is increased by placing it in hot water, right? So the temperature is increased by placing in hot water. Plan an experiment to investigate how the rate of cooling depends on metal from which each block is made. So material के साथ correlation आपने वो करना है, ठीक है? Okay. The following operators is available: cylindrical blocks of different metals, each with a hole for a thermometer, right? अदर ऑपरेटर्स नॉर्मली अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई किसी किस्म का ऑपरेटर्स फर्दर दिया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपको ब्लॉक दे दिया है ना, आपको थर्मामीटर भी नहीं दिया, एक थर्मामीटर सॉरी दे दिया उन्होंने आपको, ठीक है। सो अब आपने इसको हीट कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए आपको एक बीकर चाहिए होगा, ठीक है। सो इफ आई स्टार्ट लिस्टिंग द इक्विपमेंट ओवर हेयर, तो सबसे पहले तो आपका यहाँ मैं लेट्स से ये बनाता हूँ लिस्ट, राइट। सो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, तो नंबर 1 इज हॉट वाटर सोर्स, जो कि आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2, दैट इज नॉट एन ऑपरेटर्स बट वी डू नीड द सोर्स, बीकर विद हॉट वाटर कर दें, ठीक है, विद हॉट वाटर ऐसे करना है, दिस इज मच बेटर। इसको आप चाहे इसमें से रिमूव कर दें, राइट, ओके। अच्छा, फर्दर मोर हमने इसके साथ क्या करना है, यू नीड टू प्लान इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, वो हमने कर दिया, हमें एक हॉट बीकर ही चाहिए होगा। अच्छा, सेकेंडली हमें क्या चाहिए होगा, सबसे इंपॉर्टेंट
वो हमें चाहिए होगी स्टॉप वॉच, राइट? क्योंकि हमने टाइम भी मेजर करना होगा कि कितने टाइम में हो रहा है, क्योंकि अगर हमने डिफरेंस निकालना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ टाइम एज वेल, राइट? क्योंकि कुछ मेटल्स जल्दी ठंडे हो जाते हैं, कुछ देर से ठंडे होते हैं, तो वो जल्दी और देर को मेजर करने के लिए हमें स्टॉप वॉच रिक्वायर्ड होगी, राइट? ओके, that is done. Explain briefly how would you would carry the investigation including the measurements you would take. ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दे। की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट, तो हम की वेरिएबल्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर इफ आई पुट इन द की वेरिएबल्स, राइट? सो की वेरिएबल्स में जी जी, सर इस तरह हम हेडिंग्स दे के लिख सकते हैं। हाँ हाँ, हेडिंग देके लिख सकते हैं आप, नो वरीज। स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, राइट? एक तो ये हो गया। नंबर टू, एम्बियंट टेम्परेचर ऑफ ऑल ब्लॉक्स। तो जितने भी मेटल हैं, ये ना हो कि को पहले से ही आपने गर्म किया हो और उसको पानी में डालें, तो आपके वो ब्लॉक्स भी सारे सेम एम्बियंट टेम्परेचर पे होने चाहिए, नंबर वन। एंड सेकेंडली, जो आप हॉट वाटर यूज़ करेंगे इनको टेस्ट करने के लिए, वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है? तो आपके दो की वेरिएबल्स यहाँ पे कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, सूटेबल टेबल, टेबल में, अच्छा टेबल के हेडर्स में यहाँ आपको दे देता हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं इसकी नहीं दे रहा, ठीक है? आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द टेबल हेडर्स फॉर दिस। तो टेबल्स की अगर बात करेंगे तो आपके पास एक आ गया नंबर ऑफ ऑब्स, ठीक है? कितनी आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे। फिर मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल आप टेस्ट कर रहे हैं, किस मटेरियल का ब्लॉक है। फिर आपके पास आ जाएगा स्टार्टिंग टेम्प, राइट? फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या कहते हैं, टाइम टू रीच 25 डिग्री सेल्सियस, कि वो कूल डाउन होने में कितना उसने टाइम लिया, ठीक है? स्टार्टिंग टेम्परेचर अगर आप ना भी यहाँ पे डालें, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइम टू रीच 25 डिग्रीज कर देते हैं तो भी ठीक है। आप यहाँ पे थर्ड की वेरिएबल भी डाल सकते हैं, ठीक है? यू कैन से नंबर थ्री, आप थर्ड की वेरिएबल, अगर इसके की वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि एंडिंग टेम्परेचर फॉर टाइम मेजरमेंट, राइट? कि टाइम मेजरमेंट के लिए आपका एंडिंग टेम्परेचर क्या है, वो हमने रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो यू जस्ट नीड क्या कहते हैं, टाइम एंड मटेरियल। तो आपको सिर्फ टाइम ही कर रहा है, क्योंकि आप टेम्परेचर्स दोनों का सेम रख रहे हैं, तो डिफरेंट मटेरियल विल टेक डिफरेंट टाइम्स टू कूल। तो यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग की बात हो रही है, तो हमारा जब लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस से 25 तक हम जा रहे हैं, राइट? तो हमारा जो टाइम टी है इन सेकेंड्स, वो जो है वो किस हिसाब से चलेगा, दैट वुड मैटर, राइट? तो यहाँ पे हम मटेरियल टाइप डाल देंगे और टाइम इन सेकेंड्स डाल देंगे, या मिनट्स डाल देंगे, तो दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिफरेंट मटेरियल्स के आपके पास डिफरेंट टाइम आ जाएंगे, दैट्स यू विल हाउ यू विल बी एबल टू प्लॉट। और इसी तरीके से आप इसको फिर फर्दर मोर कंक्लूड भी कर सकेंगे कि द मटेरियल विद मोर कूलिंग रेट, ठीक है? यहाँ पे आप कूलिंग रेट लिख देंगे, ठीक है? तो कूलिंग रेट क्या हो जाएगा, कूलिंग रेट वुड बी डेल्टा टी ओवर स्मॉल टी, जो आप टाइम निकाल रहे हैं, और डेल्टा टी आपके पास फिक्स्ड है, माइंड इट। डेल्टा टी आपके पास कितना है, दैट इज एक्चुअली 55 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो 55 डिग्री सेल्सियस आपका फिक्स्ड है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, तो उससे आपका कूलिंग रेट चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से मटेरियल, टाइम टू रीच 25 डिग्रीज एंड कूलिंग रेट निकाल सकते हैं, और कूलिंग रेट के थ्रू आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। एनी इश्यूज विद दिस क्वेश्चन बॉयज? नो सर, सही है। पक्की बात है? यस। क्या एक परेशानी वाली बात है? कुछ समझ आया? दिस अ वेरी सिंपल वन, ये इजी था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन आपने याद रखना है जी जी, यस सर। सर थर्मामीटर से पहले सवाल क्यों नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो तो है ही नहीं। नहीं, थर्मामीटर आपका आ सकता है रीडिंग के लिए, ठीक है? थर्मामीटर की रेंजेस नहीं आएंगी। रेंजेस से मुराद है कि, सॉरी, वो जो उसकी नहीं होती सेंसिटिविटी, वो नहीं आएगी। थर्मामीटर क्यों नहीं आएगा? थर्मामीटर इज अ पार्ट ऑफ योर लैब। टेम्परेचर मेजरमेंट आप कैसे करोगे बगैर थर्मामीटर के, ठीक है? इसी क्वेश्चन में वो आपको थर्मामीटर भी दिखा सकते थे कि जी स्टार्टिंग टेम्परेचर ये है, ठीक है? बट अगेन दिस इज अ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो थर्मामीटर इसमें नहीं आने वाला, ठीक है? थर्मामीटर किस में आएगा?
ये ऊपर इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जिस तरह पेंडुलम वाला है, यहाँ पे आपको थर्मामीटर दे सकते हैं। किसके लिए? जो आपको, इफ़ यू रिमेंबर, आपको देंगे वो एक्सपेरिमेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम का दे सकते हैं, समझे कि नहीं? उसमें वो यूज़ कर सकते हैं थर्मामीटर, या जनरल मेजरमेंट के लिए कि एक बच्चा कूलिंग रेट मेजर कर रहा है, तो टेम्परेचर पहले ये था, बाद में ये आया है, तो नोट करेगी टेम्परेचर कितना है। ठीक है, कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कि आपका दो थर्मामीटर की डायग्राम्स होंगी जिसमें रीडिंग ए और रीडिंग बी दी होगी, तो उनका डिफरेंस आपने निकालना होगा। वहां से आप डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकालोगे, फिर वो स्टॉप वॉच भी बनी हो सकती है कि जी स्टॉप वॉच की इनिशियल रीडिंग ये थी, अब फाइनल रीडिंग ये है, तो व्हाट इज द कूलिंग रेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो वो आप कूलिंग रेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही काम जो हम यहाँ खुद कर रहे हैं, ठीक है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, हमने तो यहाँ डिज़ाइन कर लिया है, सो वी मेड आवर थिंग ईजियर, जिसमें हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर फिक्स कर दिया, सिर्फ टाइम मैयर करना था हमने। सो एक वेरिएबल मैयर कर रहे हैं हम, बाकी को हम नोट ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने नोट नहीं किया, हमने नोट फिर भी करना है। ठीक है कि नहीं? तो वो पानी को जितनी जल्दी कूल कर रहा है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट 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 इट रेडिएटेड आउट, राइट? कुछ समझ की बात की कि नहीं? तो आप इसको एक्सप्लेनेशन, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देंगे 4-5 लाइन्स की, आपकी की वेरिएबल्स हैं वो मैटर करेंगे इसमें ज़्यादा, जो कि हमने यहाँ 3 रखे हैं, प्लस आपका ये एडिशनल ऑपरेटर इसमें स्टॉप वॉच और हॉट वाटर बीकर था। ठीक है, या हॉट वाटर हीटिंग सोर्स आप कह लें। ठीक है कि नहीं? कुछ समझ आई? Yes. अच्छा, रिमेंबर, जहां पे भी आपके पास ये रेट का वर्ड आ जाएगा ना, आपने वहां स्टॉप वॉच अपने ऑपरेटर्स में लाजमी डालनी है, और असूलन उन्होंने दी भी नहीं होगी आपको। ठीक है, यहाँ मैं कह रहा था कि शुक्र है थर्मामीटर दे दिया, वरना वो भी हमें लिखना पड़ना था। सो रिमेंबर कि आपने यहाँ ये देखो, ईच होल विद अ थर्मामीटर को इस थर्मामीटर से कंफ्यूज नहीं करना। ये इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स है। अगर ये यहाँ पे अ थर्मामीटर अलहदा से ना लिखा होता, ए थर्मामीटर, तो हमें थर्मामीटर अपने यहाँ ऐड करना पड़ता, वरना मार्क्स कटेंगे आपके कि आप मेजरमेंट कैसे कर रहे हो। बल्कि हो सकता है शायद पूरा ही चला जाए, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। यू माइट गेट मार्क्स 1 or 2 मार्क्स फॉर द टेबल, बट यू वोंट गेट मच मच मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपका थर्मामीटर मिसिंग है। की कंपोनेंट है आपका स्टॉप वॉच और थर्मामीटर। ठीक है, तो उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता। गॉट इट? एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव इन माइंड? मुझे बताएं, मैं भी आई कैन टेक इट आउट, आई कैन टेक आउट दैट क्वेश्चन। ये मैंने कुछ रखे हुए थे यहाँ पे पेपर्स आप लोगों का, क्योंकि 6-2 होगा, तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। बीम बैलेंसिंग ये हमने कर लिया अभी। इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, द वन दैट वी डिड, उस जैसा ही है, बल्कि ये वही है जो मैंने किया है, सॉरी वो इसी का ही था। ओके, सर्किट वाला ये दो आर ए आर बी वाला ये आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास, ये मैंने खुद करवाया था इफ़ यू रिमेंबर। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का इजी था कि आपने वोल्टेज इंडिपेंडेंट कर, हाँ ये मॉक में भी आया हुआ था। ठीक है, ये आई थिंक ये था, हमने किया हुआ है, ये नहीं किया। वी हैवंट डन दिस, हैव वी डन दिस बिफोर? मुझे तो लग रहा है कि आरसी वाला भी किया है। मेरे पास कौन लेके, मैं आई गेस हसीब लेके आया था मेरे पास, हसीब ब्रॉट दिस क्वेश्चन टू मी। किया हुआ है। ये किया हुआ है मेरे ख्याल से। किया हुआ है सर। हाँ, याद याद नहीं किया है। हाँ वो मैं कह रहा हूँ, ये समवन केम विद द सोल्यूशन टू टू मी। वो सेंटर पॉइंट मैयर करने वाला सवाल। रेजिस्टेंस में नहीं नहीं, वो होता है कई लिक्विड्स वाला क्वेश्चन। सेंटर पॉइंट मेजर करने वाला, वो किया है ना हमने अभी पिछले में। हाँ वो मैंने आपको बताया था इसमें, इफ़ यू रिमेंबर, कि ये क्या कहते हैं, ये बैलेंसिंग वाले में, ये रहा, याद आया? इसका इसका हमने सेंटर मालूम करना था। ये तो इमेज ऊपर इसने पेस्ट कर दी ना यहाँ पे, सॉरी, राइट, लेट मी जस्ट, कंडीशन। हाँ वो इसने ये इमेज प्लेस कर सर दी। एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके चार्ज उसका बैलेंसिंग करना होता है सर। अच्छा, मतलब इरेगुलर शेप का, ऐसे की बात कर रहे हो? हाँ इरेगुलर। हाँ, तो वो प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट आप करोगे ना आप। हाँ, आप होल करोगे यहाँ पे, प्लम लाइन आपके पास आ जाएगी। लेट्स से अब एक तो ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है ना इस ऑब्जेक्ट को। अच्छा, एक काम करते सर हैं। ये तो सारा मतलब चारों कोने से बंदा लाइन बना लेता है, बीच में एक पॉइंट भी आ जाता है, लेकिन वो पॉइंट नहीं आता, वो बीच में थोड़ा सा एरिया आता है, उसको कौन सा बनाना है मुझे। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए आप प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट यूज करोगे ना, सजेस्ट करोगे प्लम लाइन। अगर तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आता है इससे रिलेटेड, तो फिर तो आप प्लम लाइन मेथड अप्लाई करोगे। अदरवाइज
फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पे तो फिर वही बात है कि आप अब जिस तरह इसी की हम बात कर लेते हैं, अभी इरेगुलर हो गया, तो अब हम इसके कोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक और हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तो फोर फोर पॉइंट फिगर होगा तो फिर तो बहुत आसान होगा काम, ठीक है, क्योंकि वो तो इजीली आपका, ओहो, वो इजीली आपका ना यहाँ से क्रॉस करके एक ही पॉइंट बनेगा, वो एरिया नहीं बन सकता। एरिया वहां बनेगा जहां पे आपके पास फिगर की शेप्स ज़्यादा होंगी, मतलब ज़्यादा साइड्स होंगी। लेट्स से आपके पास कोई 5 फिगर आ जाती है, अब आपके पास एरिया बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास एरिया बनना चाहिए, तो एरिया का जो आपका जो अप्रोक्सीमेट है वही फिर आपका सेंटर बनेगा, ठीक है। लेट्स गो विद दिस, ये सेंटर ले लिया, और ओ, इधर हमने साइड ड्रॉ नहीं की, छठी, ओके। लेट्स से कि ये 6 कॉर्नर यहाँ पे था, ठीक है। अब आप जो कह रहे हो ना एरिया आ गया है, ठीक है। सो ये अब आपके पास जो एरिया है ना सेंटर में जो इसके बन रहा है आपके पास, ना दिस इज द ट्रबल दैट यू गेट इन दिस केस। आप फर्दर मोर अगर आप गौर करो तो ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल का भी तो आप एरिया ले सकते हो ना। मैं अब ये पिंक मार्कर यूज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ, ओ सॉरी माय बैड, I'm just going to draw a pink line through it, right? ये ऐसे, ठीक है, याद है कि नहीं, साइड बाय सेक्टर्स ड्रॉ कर लो तो आपका ट्राइंगल का भी निकल आता है। साइड बाय सेक्टर क्या होता है, जो साइड को सेंटर से कट करे और एक एपेक्स पे जाके टच करे, राइट। तो ये आप लोगे तो आपका यहाँ से भी इसका सेंटर, इस ट्राइंगल का, इस एरिया का भी सेंटर निकल आएगा। यस यस जो आपका एरिया निकलेगा ना वो आपका ट्राइंगुलर ही होगा। रिमेंबर, दे विल नॉट गिव यू मोर देन 6 साइड्स, बिकॉज दैट वुड बी वन हैक ऑफ अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। बट अगेन, अगर 7 साइड्स होंगी तो वो सॉल्व नहीं होगा, 8 साइड्स वाला सॉल्व होगा, 8 के अंदर स्क्वायर आ जाएगा। और स्क्वायर का भी अगेन वही बात आती है कि लेट्स से अगर आपके पास स्क्वायर आता है ना, तो सेंटर में आप स्क्वायर का भी ले सकते हो। ट्राइंगल आ जाती है सेंटर में तो साइड बाय सेक्टर्स ले लो, ठीक है, आपके पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। गॉट इट? कोई डिफिकल्टी है इसमें? एनी अदर क्वेश्चंस बॉयज? नहीं, ये नहीं सर। ओके, एनीथिंग एल्स you guys want to discuss? देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन हमारे काम का हो। ये तो नहीं है ये वाला, नहीं सर। नहीं कोई भी क्वेश्चन काम का नहीं है। ओ यार, लेंस वाला, ओके। और भी सर कुछ होता मीन्स। हाँ, लेंसेज लेंसेज याद है कुछ? भूल भुला गए हो पेपर मतलब 4? ये मतलब ये ऐसे इसके अलावा कुछ, इसके अलावा मुझे अच्छा, अच्छा, कुछ की पॉइंट्स अब डिस्कस कर लेते हैं पेपर 6 से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये है कि देखो बच्चों, आप लोगों ने जितने भी आंसर्स लिखने हैं वो एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने हैं। अगर 2.3 सेंटीमीटर है तो एक जीरो ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, आई हैव सीन मैनी सजेशंस जहां पे वो कह रहे हैं कि अब फर्क ये होता है, ये तो आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड और कैलकुलेट में फ़र्क होता है, ठीक है। कैलकुलेशन वो होती है जो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखते हो। लेट्स से अगर आपके पास एक 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर के साथ, जो आपको लेट्स से आपकी रिकॉर्डिंग आई 2.35, राइट, और आपके पास एक गिवन वेरिएबल क्वेश्चन में है 2.0, तो यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। रिमेंबर, द आंसर इज ऑलवेज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वही आपका आंसर बनेगा। तो आपका आंसर लेट्स से इफ इट कम्स आउट टू बी 4.70, तो आप ये जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है, यू विल राइट इट इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। कुछ समझ आई? ये रूल समझ आया कि नहीं आया? सर। जी जी। सर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर 2 आ रहा है तो हम उसको 2.0 लिखेंगे ना। हाँ, 2.0 लिख दो क्या आप उसको, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है। क्योंकि देखो, लेट्स से हम मेजरमेंट लेते हैं 6.0 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और 7.50 सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है, और तीसरी वैल्यू एक आपके पास आ रही है लेट्स से 1.05 सेंटीमीटर, राइट। इनको सम करना है अब हमने। सम कैसे करेंगे? ऐड कर लेते हैं, 5 आ गया और कितना आ गया, 7 + 7 14, राइट।
तो दिस इज 14.55 सेंटीमीटर, राइट। ये तो आपकी कैलकुलेशन है, ये क्या है, कैलकुलेशन, राइट। तो कैलकुलेशन में और रिकॉर्ड में फ़र्क होता है। कैलकुलेशन में अब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लिखने, एटलीस्ट 3, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपके पास एक वैल्यू ऐसी है जो कितने में है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। कितनी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इवेंचुअली आपको इसको अगर आप ऐसे लिख दें तो भी आपका चलेगा, कंप्लीट लिख दें तो भी चलेगा। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पूरा ही लिख दें, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। इफ यू गो अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट इज बेस्ट, राइट, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शन ही खत्म हो जाता है किसी किस्म का। हाँ, इफ दे सजेस्ट यू टू राइट एन आंसर इन 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है कि जी योर आंसर शुड ओनली बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और ओनली बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी, फिर आप राउंड ऑफ पे आएंगे, राइट। अदरवाइज write as many significant figures you are getting, at least up to 4 significant figures आप नोट करें ताकि आपका आंसर किसी भी तरीके से गलत ना हो। रीज़न कि आपका आंसर कुछ कह रहा है, वहाँ पे एग्जामिनर आपकी लाइन, लेट्स से आपने एक लाइन ड्रॉ की, आपने उसको स्केल से मैयर किया, रिकॉर्ड किया, ठीक है, आपका रिकॉर्ड में आप उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 16 कर देते हैं, वहाँ पे आ रहा है 15.75, ठीक है, वो स्केल मैयर करता है, वो कहता है जी यार 16 क्यों लिखा है बच्चे ने, ये क्यों नहीं लिखा, ठीक है, जबकि एक्चुअल लेंथ तो इतनी आ रही है। रिमेंबर द एग्जामिनर्स विल पुट अ स्केल ऑन योर पेपर टू मैयर एवरीथिंग, वो मैयर करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो गिवन आंसर दिया होगा, उनके पास आंसर शीट होगी कि जी इसका आंसर 5.6 आता है तो 5.6 ही आना चाहिए। नो 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 नो, दे विल एक्चुअली मैयर द होल थिंग, राइट। वो आपकी ड्रॉन लाइंस को मैयर करेंगे कि जो आपने रिकॉर्ड किया है क्या वो आपने सही रिकॉर्ड किया है डाटा को कि नहीं। सो द रिकॉर्ड ऑफ योर डाटा इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, राइट। कुछ समझ आई कि नहीं आई? जी बॉयज, एनी ऑब्जेक्शंस हियर? नहीं सर। ओके, अगेन आई विल री एनफोर्स दीज पॉइंट्स। ये जो प्लानिंग का है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हाउ यू रिकॉर्ड द रीडिंग्स, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी मेजरमेंट और आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हो, इट नीड्स टू बी वेरी 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 एक्यूरेट, राइट। और जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वही आपके रिजल्ट में डिपिक्ट होना चाहिए, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस, योर रिकॉर्ड should be in your result, right? Don't try to build an answer, right? In case if you feel कि आपकी गलत है, let's say आपने एक चीज़ की लेंथ ली, that was 16.5, लेकिन आपको लग रहा है कि यार 16.5 करने से गलत आ रहा है, आप रिवर्स बैक करते हो कोई रीडिंग, आप कहते हो यार 18 आना चाहिए, तो मैं आंसर जो है ना, आंसर में नीचे लेट्स से 1 मार्क का आंसर है, आप 18 लिख देते हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इवन दो जो एग्जामिनर की वर्कबुक है उसमें 18 दिया होगा, लेकिन आपको ना इसके मार्क्स मिलेंगे ना इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको 16.5 लिखते हो तो हो सकता है कि इसके शायद आपको मार्क्स ना मिले, लेकिन इसके मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने वही वैल्यू रिकॉर्ड की है जो आपकी एक्चुअल ड्रॉ हुई है, ठीक है। सो एज पर ड्राइंग आपका काम होना चाहिए, ठीक है। खुद से इसमें आपने जिसको कहते हैं ना कि अपनी एडिशन नहीं करनी किसी किस्म की, जो आपको स्केल दिखा रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है वही आपकी वैल्यू है। गॉट इट? Any other questions, boys? Any queries you have? नहीं सर, बस क्लियर है। Clear है? Okay. I would suggest कि boys आप लोग एटलीस्ट कितने पेपर्स अभी तक आपने किए हैं? कुछ किए हैं पेपर्स? सर हमें कितने करने चाहिए? बेटा एटलीस्ट 5 पेपर्स, तो 5 से 6 पेपर्स करो। कल आपका पेपर है कोई? डू हैव अ पेपर टुमारो? नहीं नहीं सर, कल नहीं, कल नहीं। कल नहीं है? दैट इज़ बेस्ट। यस सर। कल स्कूल खुल रहा है, कल स्कूल आ जाओ आप लोग, मेरे सामने बैठ के पेपर्स करो, ठीक है। चलो सर, सही है, देखते हैं। हाँ, जितने आ सकते हो आ जाओ, जितने बंदे आ सकते हो। इट इज़ बेस्ट कि आप लोग वहीं आ जाओ, ताकि जो इंडिपेंडेंट क्वेरीज हैं जो है, मैं वहाँ पे पेपर आपके चेक भी करता जाऊँगा साथ साथ, ठीक है, इंडिविजुअली। तो you will get an idea of what where you're going wrong and where you're going right, right?
स्पेशली डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के एटलीस्ट आप लोग 5 क्वेश्चंस करें, ठीक है। मुझे करके अभी भेज दो इवनिंग में, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा, यू ऑल हैव माई व्हाट्सएप। नहीं तो आप कल आ जाओ, कल अपने सोल्यूशन साथ ले आना, वहीं पे चेक कर लूँगा, आई कैन डू दैट एज वेल, राइट। तो ज़रूर करें, कम से कम 6 आप करें इसके डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के, 5 या 6 क्वेश्चंस कर लें। फिर ग्राफ के एटलीस्ट आप 4 क्वेश्चंस ग्राफ वाले, ये जो है ना जिसमें ग्राफ आपको रेंज करना पड़ता है और डिफरेंट कीजिएगा। रिमेंबर, दो वो करने हैं जिसमें आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, और दो वो करें जिसमें आप जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, लाइक दिस वन, राइट। तो आप 4 ग्राफ ये सॉल्व करने हैं। बाकी सर्किटरी वगैरह वो मतलब दोज आर कॉमन, आई एम प्रीटी श्योर वो आप लोग कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। मुझे सिर्फ जो 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 थोड़ी सी टेंशन है वो इस ग्राफ की है, बेस्ट फिट लाइन वाले की। और कोशिश करें कि कोई ऐसा लें कि जिसमें डाटा ऐसे रिप्रेजेंटेड हो जो कर्व भी ड्रॉ कर रहा हो, ठीक है। तो उसको भी आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। बाकी बैलेंसिंग का क्वेश्चन हमने कर लिया, ये आप लोग कर लेंगे इस किस्म के जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक लेंस वाला ये जो एक क्वेश्चन अभी सामने आ रहा था हमारे, ये एक इसको भी ज़रा एक क्वेश्चन को रिजॉल्व कर लें। वेरी लिमिटेड चांस दैट दिस वुड बी देयर, बट अगेन स्टिल आप ये इसको कर लें तो बेहतर है, ठीक है। हीटिंग और कूलिंग आ सकती है, दिस इज़ वेरी इजी। अगेन ये प्लान इन्वेस्टिगेशन है, तो एटलीस्ट 6 of these DOE एक्सपेरिमेंट्स यू नीड टू सॉल्व। 2-4 आप ये कर लें, इसके ज़रा कॉम्प्लेक्स से कोई भी कर लें, ठीक है। इट्स बेस्ट कि अगर आप लोग कल आ जाते हैं तो कल का मेरे आई कैन टेक, मेरी कोई क्लासेस तो है नहीं, तो आई विल बी अवेलेबल विद यू गाइस। कल पेपर है, कल मेरी इन्विजिलेशन नहीं है, सो आई विल बी फ्री ऑल डे लॉन्ग, राइट। क्लासेस तो होंगी नहीं, तो आप लोग आए मेरे साथ बैठ जाएं, वहाँ पे भी सॉल्व करें, and then go back home and relax yourself, and then keep your articles ready for the next day, for the next paper, right? ठीक है boys, ओके सर। okay. uh, if you have any objections, any queries, do let me know, मुझे text कर देना। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, टेक केयर बॉयज, एंड डू सॉल्व दीज पेपर्स जो मैंने भी आपको रिकमेंड किए हैं, ठीक है बेटा। बाय बाय। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।